from here. If once everybody will be in, I mean, will we will pitch in. So let's start now. Yeah. You can Siddharth, let's begin. It's just setting up the this thing, setting up with Facebook Live. Okay, fine. Let it set up. It will take there will be a minute slap. So we already have 24 participants. Okay, it's live on Facebook. I'm sharing the link in a minute. Yeah, please do that. Yeah. Prajita aa jati thi, Parthasarathy got lost. We are adding him again. Have sent message to Arman Ali to join. Yeah, that would be great, Ratan bhai. Yeah, Thank you. have sent. Yeah, just now. Yeah. Siddharth, unless anybody who's a new joinee is a speaker, kindly please ask us if their video and audio has to be started. Okay, sir. Welcome, Parthasarathy. Siddharth, can you please unmute Parthasarathy? I did. I unmuted. Thank you, great. I don't think other people are joining us. Are more people joining us? Not yet, right? Yes. Sir, I think I am making you the host. You will have to connect to this thing YouTube because What? Okay. What did you say, Siddharth? Can you come again? Hello. hello. Yeah. What did you say? Yeah, I'm not able to log into YouTube from my side. I think you will have to connect to YouTube and go live. But if you give me the login for, if you give me the host, will we lose the YouTube? Facebook, I don't think so. Will lose the Facebook? Give me the host. Yes. And just check if we lose the login or not, lose the Facebook Live or not. Yes. I'll check. And keep checking the stream, okay? Yes, sure. Oh, it's still live on Facebook. As you can see on the top left corner, that we are live on Facebook. Okay, so it gives me the power to, but right now it's not giving me the power to actually start with YouTube. Let's start with Facebook itself. I think that's enough. What do you think, suggest, Roshan? Let's start. Yeah, Roshan. Yeah, sure. I don't think let's start, we should yeah, we should start it. Yeah. Done. Siddharth, let's start. Okay, just a second. It's giving me something regarding Facebook. What does it say? Okay, sir. Done. Start. Yeah, done. Good evening, everyone. I, Advocate Siddharth Kumar Singh, welcome you all to All India Professionals Congress New Delhi Chapters webinar titled as COVID-19 and its Health Effects Experts View.
I will now be handing over the reins of moderation to my senior and fellow of AIPC New Delhi, Advocate Prakhar Dixit, sir. Thank you. Welcome to all the guests. Thanks a lot for being here and making this event memorable. I'll now like to invite Smita Mishra ji for introducing all the speakers who will be joining us here. Thank you. Good evening, everyone. And I'd like to welcome all my guest speakers, for giving their precious times. And I'd like to introduce them. Dr. Shay Singh, MBBS, MD, LLB, LLM, and Additional Director, School Health Science Scheme, Additional Director, Public Health, ex-Nodal Officer, COVID-19, and ex-Member Secretary, State Task Force, COVID-19. Dr. Indu Arneja, PhD, Psychology, Psychologist, and Life Coach, trained CBT and CDT therapist, and Dr. Dharmesh Lal, Senior Health System Expert, DNB, MD, DHA, MBBS, WHO Scholar, and our very own President, AIPC, New Delhi. And also Arman Ali, Executive Director, will be joining us soon, National Center for Promotion of Employment for Disabled People. And we also have a sign language expert. She should be joining us as well very soon, Ms. Aprajita Pandey from Nehru Bharati Deemed to be University, Allahabad. And I think this is the first time we're having a sign language expert itself. So yeah, without further ado, I'd like to give it to the Prakhar to carry forward the man, please. Thank you, Smita. आप सभी जानते हैं कि कोविड हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है. इस पे बहुत सारी सेमिनार्स, वेबिनार्स और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कम ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारा विजन कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, जो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का भी विजन है AIPC ND के. और अब मैं अपने ROO नॉर्थ मिस्टर रोशन संथालिया को इनवाइट करूंगा कि AIPC के विजन के बारे में और AIPC के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं. रोशन जी प्लीज. धन्यवाद प्रखर जी. AIPC या ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का जो बर्थ हुआ है वो अराउंड 3 साल पहले AIPC ने अपना जन्म लिया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एज अ डिपार्टमेंट AIPC को लाया गया है. ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का जो मूल रूप से सिद्धांत है वो है कि जो हमारे देश के प्रोफेशनल्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपनी सोसाइटी और पॉलिटिक्स में अपने कंट्रीब्यूट कर पाएं. बहुत सालों से हमने अपने देश में देखा है कि प्रोफेशनल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं था. प्रोफेशनल्स बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं यूजुअली और बहुत रुचि रखते हैं पॉलिटिक्स और रिलेटेड सोसाइटी रिलेटेड एक्टिविटीज में, बट उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिसिंग था. तो ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स अपने आप में एक पहली संस्था है, पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिपार्टमेंट है, अक्रॉस पार्टीज पहला डिपार्टमेंट है जो कि प्रोफेशनल्स को मौका देता है आगे आकर बात अपनी रखने का. रोटरी काइंड का एक स्ट्रक्चर है. जो चेयरमैन है ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के डॉक्टर शशि थरूर, जिन्होंने काफी किताबें लिखी हैं जनरल लिटरेचर पे, और जिनकी अपनी एक कमांड है ओवर इंटेलेक्ट एंड लैंग्वेज. उन्होंने एक स्पेशल उनका शुरू से एक आइडिया था कि एक रोटरी टाइप का स्ट्रक्चर हो ताकि ना सिर्फ एक पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक बातें हो पाए, बट एक सम लेवल की नेटवर्किंग और लाइक माइंडेड लोगों के बीच में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग भी बन पाए. तो रोटरी लेवल का जो फॉर्मेट है उससे ये है कि AIPC के पूरे इंडिया में कई चैप्टर्स हैं. ये जो चैप्टर्स बने हैं ये एज पर दी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी चैप्टर हैं. जैसे दिल्ली के अंदर हमारे 7 चैप्टर्स हैं अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से. AIPC इससे पहले भी काफी वेबिनार्स कर चुका है, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दों पे वेबिनार्स कर चुका है, और आज AIPC का ये एक प्रिविलेज है कि इतने अच्छे स्पीकर्स जुड़े हैं और वो जुड़कर आज इस प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे कोविड को लेकर और कोविड की हेल्थ की समस्या को लेकर. जो ओवरऑल विजन है वो यही है कि एक प्लेटफॉर्म मिले प्रोफेशनल्स को और एक चर्चा का मुद्दा मिले, एक स्थान मिले जहाँ पे चर्चा हो सके और बात एक रिसर्च वे में रखी जा सके. अगर आप इंटरेस्टेड है फेलो बनने के लिए तो आप profcongress.com पे जाकर अपना फेलोशिप रजिस्टर कर सकते हैं. थैंक यू.
धन्यवाद रोशन जी, आपने इतने शॉर्ट समय में और इतने इम्प्रॉम्प्टू आकर के हमें ज्वाइन किया और इतनी अच्छी तरीके से प्रोफेशनल कांग्रेस के बारे में बताया। हमें ज्वाइन करने में अवनी बंसल जी भी हैं, जो कि AIPC दिल्ली की सेक्रेटरी हैं। अवनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज शॉर्ट में कुछ AIPC दिल्ली के बारे में कहें तो बहुत अच्छा होगा। प्रखर, can you hear me? Yeah, we can hear you. सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सारे स्पीकर्स को जिन्होंने संडे को समय निकालकर जो है ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस प्लेटफॉर्म को, इस डिस्कशन को ज्वाइन किया। हम सभी जानते हैं कि कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स जो हैं वो कैसे हम सबके मसीहा, हम जानते हैं डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन कोविड-19 के समय पे उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो हमें बहुत ज्यादा रियलाइज हुई है। उसके बावजूद भी एक छुट्टी वाले दिन संडे को समय निकालना, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और जितने लोग देख रहे हैं हमें, मैं कहना चाहूंगी कि ये पहली बार है कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस ने नॉर्थ चैप्टर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि साइन लैंग्वेज के थ्रू जो लोग नहीं सुन पाते हैं उनको भी इंक्लूड करना। तो ये एक जो कांग्रेस की विचारधारा है इंक्लूसिवनेस की, कि किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, उनकी बातें सुने, अपनी बात बोलने पर जोर नहीं रखें पर अलग अलग लोगों की बात सुनने पर जोर रखें, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत अभिनंदन प्रखर का, प्रशांत का, पूरे नॉर्थ चैप्टर की टीम का इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और सारे पैनलिस्ट का। आपको रोशन ने बताया कि आपको यदि प्रोफेशनल कांग्रेस ज्वाइन करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, पर अभी मैं लिंक पे सब जगह एक फॉर्म भी डाल दूंगी, ताकि यदि आपके पास 2 मिनट का समय, आप बस ये फॉर्म भर दीजिए एंड समबडी फ्रॉम आवर टीम, हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको रीच आउट करेगा और आपको ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस दिल्ली का टीम का पार्ट बनाने में मदद करेगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखर, ओवर टू यू। थैंक यू। धन्यवाद अवनी जी। और अवनी जी जैसे कि सिंगल मैन आर्मी है, हमारी सिंगल वुमन आर्मी, आई मस्ट से, बिकॉज शी इज अ फार एक्सीलेंस फेमिनिस्ट एज वेल, शी विल टेक अम्ब्रेज और बताने के लिए कि कैसे AIPC को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे सभी दोस्त और जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कृपया प्लीज आप चैट में देख सकते हैं, हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे। नहीं तो जैसा कि रोशन जी ने कहा कि आप प्रोफेशनल कांग्रेस की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अब मैं अपनी नॉर्थ दिल्ली AIPC की प्रेसिडेंट श्रीमती अनुमा आचार्य, जो कि मल्टी फेसिडेड पर्सनैलिटी है और रिटायर्ड है, विंग कमांडर एयरफोर्स से, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पर्सनल संस्मरण और कुछ शेयर करें इस बारे में जो टॉपिक हमारा है, और फिर उसके बाद हम लोग फ्लो को आगे बढ़ाएंगे। अनुमा जी प्लीज। Can't see Anuma ji. Anuma ji, we lost her. Siddharth, can you see Anuma ji? Not yet. Okay, maybe we can go ahead and we can start with the questions. So I will like to. She is there. Anuma is there. I can see Anuma. Anuma ji ko. No, I think she was traveling. Maybe her network is not good. Siddharth, if you can see Anuma ji, please ask her to speak. No, she is yeah, she is joining. She is logged. She is joining. Yeah. Let her join in and then we start. Yeah. तो मैं अनुमा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो हमें सुन सकती हैं, कि वो अपने संस्मरण और टॉपिक के बारे में कुछ शेयर करें जिसमें हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। अनुमा जी, आपको आवाज आ रही है? हमारे बीच में आप देख सकते हैं स्पॉटलाइट वीडियो हमने करा है। ये अपराजिता पांडे जी हैं, ये लेक्चरर हैं जैसा कि आपको बताया है ऑलरेडी स्मिता मिश्रा जी ने, और दूसरा ये साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हैं। तो स्पॉटलाइट वीडियो में ये पहली बार है कि हमारे सेक्रेटरी का विजन था कि हमको AIPC ND के थ्रू साइन लैंग्वेज को हर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के बीच में पहुंचा करके और आगे बढ़ाना है। ऐसा करना है कि ये देश तक पहुंचे, हर बड़ी छोटी रैली में हमारे बीच में ऐसे लोग हों जो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को रखें, और ये तबका जो है ये कहीं छूट ना जाए, इसलिए हमारे बीच में रहे। अनुमा जी, आप सुन सकती हैं हम लोगों को? मुझे लगता है अनुमा जी का शायद नेट ठीक नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
हम लोग अनुमा जी के पास वापस आएंगे। तो अब हमारे पास 3 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का पैनल है और बहुत अच्छी बात है कि तीनों ही डॉक्टर्स हैं। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर शेर सिंह जी का, मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर धर्मेश लाल का, मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर इंदु अर्नेजा जी का, और मैं स्वागत करता हूं हमारे चैप्टर्स कोऑर्डिनेटर शहबाज कासिम जी का। तो वो और शहबाज जी और मैं मिलकर के क्वेश्चन आंसर सेशन को मॉडरेट करेंगे। जी शहबाज जी। थैंक यू प्रखर। थैंक यू शहबाज जी। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा या प्लीज गो अहेड। नहीं, प्लीज गो अहेड। ओके फाइन। मेरा पहला प्रश्न है डॉक्टर शेर सिंह जी से। आप प्रशासन में हैं डॉक्टर साहब और बड़ी प्रतिष्ठित पोस्ट पे हैं। आपने कोविड की टीम्स हैंडल करी हैं और अभी भी कोविड की बहुत सारी चीजों से संबंधित हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि इसमें क्या करके हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं और ये वायरस किस तरीके से और वायरसेस से अलग है? देखिए, आपने पूछा कि एक तो ये वायरस को हम पहले जैसे वायरसों की तरह ही डील करें या नहीं करें जी, और किन चीजों से हम इसके बचाव कर सकते हैं। तो अब बाय द टाइम सबको एक बात पता लग चुकी है कि हमको कोविड के बारे में सब कुछ नहीं पता है। एक बात पता लग चुकी है कि हमको कोविड के बारे में सब कुछ नहीं पता है। आपने देखा होगा कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो कॉमन हैं और वो लगभग सब तक पहुंच चुकी हैं कि हमें इसमें एक फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग का नाम देते हैं। और हमारे जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं वो कहते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग विद सोशल बॉन्डिंग। और दूसरी बात ये कहते हैं कि चूंकि वायरस का अभी पूरी तरह नहीं पता है कि एयरोसोल होता है या नहीं होता है, लेकिन फिर भी शुरू से ही ये पता है कि ये फेस से, हाथ टच करने से वगैरह वगैरह से भी होता है। इसलिए हम हैंड वॉशिंग पे बहुत जोर दें। हैंड वॉशिंग के अल्टरनेटिव के रूप में सैनिटाइजर यूज किया जा सकता है। और भी चीज़ें बहुत सारी बताई गई कि भाई हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए और उन चीज़ों से बचना चाहिए जहाँ पर कि हम बहुत करीब करीब बैठे हों या टच करें। तो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करनी चाहिए जिनको कि सोशल गैदरिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हर बार कोई ना कोई वायरस, फ्लू वायरस हम यूज करते हैं, हर बार आता है और उससे डील करते हैं, मगर ये वायरस उस जैसा है या अलग है? तो सर्टेनली कुछ रेस्पेक्ट्स में ये वायरस वैसा ही है, लेकिन कुछ रेस्पेक्ट्स में अलग है। और वो रेस्पेक्ट्स अलग क्या है? नंबर एक तो ये पेंडेमिक है। तो और पेंडेमिक ऐसा है कि जिसके बारे में हम अभी तक कुछ पूरी जानकारियां नहीं जुटा पाए हैं। इतनी जानकारियों के बाद भी अभी भी ये क्लियर नहीं है कि ये वायरस कैसा, इसका कैरेक्टर रियली में है। तो हमें ये अभी बहुत कुछ जानना होगा, बहुत कुछ जान गए हैं, लेकिन मैं कुल मिला के ये कहूँगा वो जैसा भी वायरस है, पर हमारे पास पब्लिक हेल्थ में वो सब टूल्स हैं जिनसे हम इस वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, थैंक यू डॉक्टर साहब। अब मेरा एक धर्मेश जी से सवाल है, डॉक्टर धर्मेश लाल से, कि डॉक्टर साहब किस तरीके से आपको लगता है कि इसकी ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए? क्या हमारे पास अभी कोई मेडिसिन है इसकी? अच्छा, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहले मेरा सब पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार, और जितने भी लोग इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं उनको मेरा बहुत बहुत हार्दिक दिल से नमस्कार। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सब लोगों को कि आपने ये इतना बड़ा रेलिवेंट टॉपिक को लिया और इसके लिए आज आपने ये टाइम निकाल कर ये डिस्कशन रखा, तो इसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि इसका कोई इलाज है या नहीं, तो अभी तक जैसे बताया डॉक्टर शेर सिंह ने कि पहले तो हम वायरस के बारे में बहुत कुछ अभी जानते नहीं है। जितना जितना समय बीतता जा रहा है उतना उतना साइंटिस्ट लोग इस बात पे आए जा रहे हैं कि अभी तक हम इस वायरस के बारे में कुछ नहीं जानते। कल मैं इसी समय कल हमारे एक वेबिनार में था, मैं इंटरनेशनल वेबिनार में था और मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन किया। मैंने कल WHO की जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर स्वामीनाथन,
तो उनके साथ मैंने कल बात की, डिस्कशन किया, तो उसमें एक बात निकल कर आई कि वायरस के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, एंड वायरस के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। और जहां तक आपका सवाल है ट्रीटमेंट के बारे में, तो अभी तक जो भी व्यू है साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का, अभी तक का ये व्यू है कि इसका कोई भी इलाज अभी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के पास नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो पेशेंट्स को दे दिया जाए और वो कोई भी डॉक्टर क्लेम करे कि 100% उसको क्योर करेगा। तो इसमें कहा जाता है और साइंटिस्ट लोगों का व्यू है कि इसके इलाज के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो प्रिवेंशन है, बचाव। तो इससे हम सबको, समाज को, चाहे हम काम पे जा रहे हों, चाहे अपने घर पर हों या बाहर कहीं पर भी हों, हमें सिर्फ बचाव के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो ट्रीटमेंट का सवाल है, उसमें ट्रीटमेंट में एक 2-4 ट्रीटमेंट अभी हैं जिनके मैं नाम आपके सामने बताना चाहूंगा, जो कि लोग बता रहे हैं। कल डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी मेरे को बताया हमको कि जो रेमडेसिविर ट्रीटमेंट है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, अभी तक जो भी एंटीवायरल थेरेपी ट्राई की गई है वर्ल्ड ओवर, उसमें से सबसे ज्यादा वो प्रॉमिसिंग है। लेकिन उसके बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता, कितनी भी सारी स्टडीज हो गई, कि वो कितना इफेक्टिव है। तो एक तो ये बात है रेमडेसिविर के बारे में। कुछ थेरेपी चल रही है अभी यूएसए के अंदर, अंडर ट्रायल है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, तो उसमें बता रहे हैं कि काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, लेकिन अभी उसका भी फाइनल कंक्लूजन नहीं हुआ है कि वो कब स्टार्ट करेंगे और कितना वो इफेक्टिव रहेगा पेशेंट्स के लिए। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा, सब लोग सुन रहे हैं, कि वैक्सीन के बारे में कल बताया मेरे को चीफ साइंटिस्ट WHO ने कि जो वैक्सीन के जो आने के चांसेस हैं वो मोस्ट लाइकली फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में आने के चांसेस हैं। अभी करीब इस समय 150 कैंडिडेट्स हैं, वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, और इंडिया भी जिसमें से 7 वैक्सीन के ऊपर पार्टिसिपेट कर रहा है ट्रायल्स के अंदर। लेकिन हमें इफेक्टिव वैक्सीन मिलने के जो आसार हैं अभी तक देखकर, वो ये है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 मिलेगा। तो इसमें ये है। बाकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे, जैसे मैंने बताया, प्रिवेंशन करना चाहिए, और दूसरी चीजें ऐसी हैं कि कुछ खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। इस समय फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, करीब WHO कहता है कि करीब 400 ग्राम फ्रूट्स पर डे खाना चाहिए। और हमको कोई भी चीज बाहर की अवॉइड करनी चाहिए, जैसे आइसक्रीम है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, या जिसमें ट्रांस फैट ज्यादा होता है। ट्रांस फैट्स मतलब जैसे चिप्स होते हैं, पैकेज फूड्स होते हैं, वो सब हमको अवॉइड करना चाहिए। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का रिकमेंडेशन है, मैं नहीं बता सकते कि वो कितने इफेक्टिव होते हैं, कि उसमें भी काढ़ा के बारे में और गोल्डन टी के बारे में, हल्दी का, मैं यहाँ पर आपको हेलो या हेलो डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, आपको सुन सकते हैं हम लोग, प्लीज गो अहेड। डॉक्टर साहब आपको सुन सकते हैं, प्लीज गो अहेड। हेलो, मुझे लगता है शायद डॉक्टर साहब से कुछ कनेक्शन हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा है। शहबाज भाई, आप क्या नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पूछेंगे? यस जी जी। डॉक्टर इंदु से है मेरा क्वेश्चन। जी मैम, एज द केसेस ऑफ मैम, एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल? Yes, I can hear you. मैम, एज द केसेस ऑफ मेंटल इलनेसेस और चैलेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं कोविड का रीजन, हमारे पास कोई ऐसी परसेंटेज है क्या इतनी परसेंट में बढ़ गए हैं? जैसे आप तो बहुत सारे लोगों को मिल रहे होंगे, देख रहे होंगे, पिछले जो 4 महीने का लॉकडाउन का पीरियड रहा है उसमें इंक्रीज हुए हैं आपके पास पेशेंट्स, या आपके पास कुछ ऐसी परसेंटेज है कि कोई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ऐसी कोई स्टडी जो है, बिकॉज इट्स स्टिल गोइंग ऑन, दो स्टडीज आर स्टिल गोइंग ऑन, बट जैसे जनरली जो हम पढ़ रहे हैं या बाकी सोर्सेज से पता लग रहा है, जो बाहर की कंट्रीज में जहाँ पर एक्चुअली नाउ इट इज ऑन द काइंड ऑफ इट इज ऑन द रिड्यूसिंग साइड, वहां पर ये जरूर सामने आया है कि स्पेशली जो पेशेंट्स कोविड से एक बार अफेक्ट हो जाते हैं, दे हैव कपल ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स लाइक
पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस सिंड्रोम उन लोगों में बहुत ज्यादा देखा गया है, क्योंकि एक बारी जब वो होता है तो एक तो एंजाइटी लेवल उस वक्त बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ फियर अबाउट द इलनेस। हालांकि जबकि स्टडीज ये बताती हैं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिकवर वेरी वेल, recovery rate is very very good. It's only in case of comorbidities or in case of old age or in case of pregnancy, diabetes, hypertension, we know the chances are little poor. But in general I think most of the people are recovering very well. लेकिन वो पूरा thought process कि मुझे COVID हुआ है और बहुत uncertain है इसका outcome जो है, that provokes extreme anxiety among patients. So studies have shown that almost 96% of the patients who were affected by COVID, they experienced PTSS, post-traumatic stress syndrome. कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन भी उन्होंने आइडेंटिफाई करा, 20 to 25% पेशेंट्स में इवन स्ट्रेस भी डिप्रेशन भी आइडेंटिफाई करा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द थॉट प्रोसेस दैट ओके आई एम कोविड, आई एम अफेक्टेड बाय कोविड। तो डेफिनेटली बाकी जो मैं जनरली मेरे पास प्रैक्टिस में जैसे पेशेंट्स आते हैं या काउंसलिंग के लिए मुझे लोग अप्रोच करते हैं, तो आई डू गेट टू सी दैट लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सट्रीम एंजाइटी for catching COVID. Although they are free right now, they don't have any symptoms of COVID, but they are very, very scared and they are very fearful, and they have actually literally cut down themselves from the surroundings or moving around. So definitely mental health issues तो अभी भी और आने वाले टाइम में बहुत मेजरली बढ़ने वाले हैं, because it is not just COVID, but post lockdown effects and the lockdown effect is going to be very extreme, affecting the mental health of people. Okay. Definitely it's going to be multiplying many folds. डॉक्टर धर्मेश से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। तो सब आपने बात करी कि ये वैक्सीन WHO के वैक्सीन हेड ने कहा कि 2020 के फर्स्ट हाफ तक आएगी। क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं, क्योंकि और फ्लूज की तरह या और जुकामों की तरह क्या इसकी वैक्सीन बनना भी संभव है या ये संभव नहीं है? डॉक्टर धर्मेश लाल, शायद मैं एडमिट कर रहा हूं उनको। डॉक्टर शेर सिंह जी, आप प्लीज जवाब दे दीजिए। जी देखिए ऐसा है, पहले तो मैं अपना ये बता दूं कि मैंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की, उसमें एक प्रेडिक्शन ये भी थी कि बाई 2020 ना तो कोविड-19 का वैक्सीन तैयार होके पब्लिक के यूज के लिए आ पाएगा, मतलब इस स्थिति में नहीं आएगा कि पब्लिक उसको यूज कर सके, ना स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं आ पाएगी और ना ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो पाएगी, भले ही आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलें या ना बोलें। बाकी डॉक्टर धर्मेश और डिटेल में आपको बता देंगे कि क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कई सारे इशूज हैं। उसकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, इफेक्टिविटी देखी जाती है। उसके कुछ इशूज हैं कि वो इफेक्टिव होके फिर उसके जो एथिकल इशूज हैं वो हो पाता है कि नहीं। फिर उसके कुछ इशूज हैं जिसको हम कहते हैं ना स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, वो यही सब है। तो मैं नहीं समझता कि 2020 तक इन तीनों में से कुछ भी आ पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अब तक 3 बातें मैं कहना चाहूँगा इसी में, कि अब तक जितनी भी नई कोई भी डिजीज आई है, पर्टिकुलरली वायरल, शुरू में जब वो डिजीज नई आती है तो ओब्वियसली हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। यही तरीका होता है कि हम धीरे धीरे उसे सीखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुरानी डिजीज में हम ऑलरेडी हमारे एक्सपीरियंसेस साथ होते हैं। हमारे पास भले ही मेडिसिन हो या ना हो, वैक्सीन हो या ना हो, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो या ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जो टूल्स हैं कि कैसे हम सर्विलेंस करेंगे, कौन से तरीके और ऐसे टूल्स अपनाएंगे जिनसे कि हम उन डिजीज़ों को बिना दवाई के या बिना उसके भी जितनी प्रेजेंट में नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है उसके आधार पे हम स्ट्रेटेजी बनाएं और इसको रोक सकें। तो आपके स्पेसिफिक, मैं इस पे बाद में जब आप पूछेंगे तो और डिटेल में बताना चाहूँगा, लेकिन फिलहाल आपके स्पेसिफिक प्रश्न का स्पेसिफिक जवाब ये है कि मुझे कम से कम 2020 तक इनमें से किसी भी चीज़ के आने की उम्मीद नहीं है। अगर मेरी बात गलत निकले तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। जी ओवर टू शहबाज कासिम जी। My question is to Indu ma'am. Ma'am, how will we decipher that someone
जो इतना नॉर्मल दिख रहा है कोई, और अचानक से डिप्रेशन में जाता है, जैसे अभी ये फिल्म स्टार वाले केस में हुआ। दे हैव एवरीथिंग, पीपल हैव एवरीथिंग, दे आर लीडिंग वेरी नॉर्मल लाइफ। ऑल ऑफ सडन आप सुनते हो कि सब कुछ खो गया और उसने अपनी लाइफ ही खत्म कर ली या बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। तो वो कुछ वो साइन देता है क्या कोई ऐसा जो डिप्रेशन में एंटर कर रहा होता है? नॉर्मली डिप्रेशन जो है वो कभी भी ओवरनाइट नहीं होता. It Right, almost starts and actually comes into full blown this thing in almost 3 to 6 months usually, unless it is a very situation bound depression. पर यूजुअली घर के जो लोग हैं या जो उसके क्लोज रह रहे हैं, पेशेंट के साथ रह रहे हैं, वो इस चीज को ऑब्जर्व तो करते हैं, लेकिन उस चीज को ना तो एक्नॉलेज करते हैं और ना ही इस चीज को अटेंड करने के लिए रियलाइज करते हैं कि व्हाट एक्शन कैन वी टेक. दे कैन सी द पर्सन being quiet और not interacting, socialization कम हो जाता है, खाना पीने पे इफेक्ट आ जाता है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है या ओवर स्लीपिंग हो जाती है या अंडर स्लीपिंग हो जाती है, या तो बिस्तर से उठ ही नहीं रहे हैं, काम काज पे नहीं जा रहे हैं, कुछ भी किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा बिल्कुल नींद नहीं आ रही है. जब भी आप उनको देखेंगे वो आपको बैठे हुए मिलेंगे, नींद नहीं ले रहे हैं. खाने पीने पर इफेक्ट आ जाता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उदास दिखेंगे, बात पर रोने लगेंगे, बहुत छोटी छोटी बातों पर वो अपसेट हो जाएंगे. सो दीज सिम्टम्स आर वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन ऑफ अ पर्सन गोइंग इनटू डिप्रेशन. ऐसा सब कुछ हम सबके साथ भी होता होगा. हमारा भी मूड कभी खराब होता है, कभी उदास हो जाते हैं, कभी खाना नहीं खाते, बट आफ्टर अ व्हाइल वी कम आउट ऑफ इट एंड वी लीड अ नॉर्मल लाइफ. But people who are suffering with depression, this will be kind of a consistent and persistent symptoms. So family, relatives, friends, neighborhood, they should be able to observe these symptoms. And if you see this, they are clear sign of anybody going into depression, and that should be attended. The first thing is कि at least connect करें, बात करें उनके साथ, observe करें, एड्रेस करें. सबसे ज्यादा जरूरी ये है. हो सकता है मेडिकल मैनेजमेंट आपको ना आता हो, लेकिन सोशल मैनेजमेंट हो गया, इंटरपर्सनल मैनेजमेंट हो गया, एटलीस्ट उसके लिए हम जरूर एफर्ट कर सकते हैं. एंड एवरीबडी शुड नो कि वी हैव टू बी विजिलेंट अबाउट इट, स्पेशली द number of cases of depression as it is was going very high, and we were anticipating very high depression cases even before COVID. So post COVID we can expect it to multiply many folds. All the more it is important that we stay vigilant and be careful about, like anybody could be slipping into depression. I hope that answers your question. Thank you, ma'am. Thank you. Prakhar? Unmute yourself. आवाज नहीं आ रही. डॉक्टर धर्मेश लाल जी से मेरा एक प्रश्न. धर्मेश लाल जी, आप मुझे सुन सकते हैं? यस यस. या सो डॉक्टर साहब, मुझे वैक्सीन की बात हम लोग कर रहे थे, शायद आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था. तो क्या आप ये बता सकते हैं कि वैक्सीन इसकी डिफरेंट कैसे है हमारी और तरीके के फ्लू या जुकाम से, और अगर इसकी वैक्सीन बन पा रही है तो और तरीके के जुकाम या फ्लू की वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रही? देखिए, जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन तो हम किसी भी कीटाणु के लिए बना सकते हैं, लेकिन किसी की भी वैक्सीन बनाने से पहले ये जरूरी होता है कि उस बीमारी के लिए हमें वैक्सीन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए. तो जहां तक कोविड-19 का सवाल है, उसके लिए हमें वैक्सीन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये जो वायरस है, जो उसकी फैलने की तीव्रता है वो बहुत तेज है. और अभी तो पिछले हफ्ते से एक नई थ्योरी भी आ गई है कि अगर हम मान लीजिए क्लोज किसी स्पेस में जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बैंकेट हॉल में जाते हैं, या हम किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पर क्लोज है और एयर सर्कुलेशन बाहर का फ्रेश एयर की वहां पर कोई प्रोविजंस नहीं है, तो वहां पर अगर हम मान लीजिए 1 मीटर या उससे ज्यादा 2 मीटर का भी डिस्टेंस रखेंगे, तब भी इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन इधर से उधर एक दूसरे से होने के चांसेस हैं. तो कहने का मतलब यह है कि जब इस तरह का जो वायरस है जिसमें फैलने की तीव्रता ज्यादा है और जितनी तेजी से आप सब लोग देख रहे हैं कि कितनी तेजी से फैल रहा है, भारत में करीब 9 लाख केसेस हो चुके हैं, 22,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं. तो इसीलिए, और इसका कोई भी हमारे पास पुख्ता कोई इलाज नहीं है, जैसे हमने पहले थोड़ी देर पहले जिक्र किया, बात की कि इसका कोई भी हमारे पास पुख्ता इलाज नहीं है. तो इसीलिए इसका वैक्सीन बनाने के लिए
पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली लोग, साइंटिस्ट लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले भी जब आपने मेरे से सवाल पूछा था तो मैंने बताया था कि कल ही मेरी बात हुई थी चीफ साइंटिस्ट WHO के साथ, तो उनके साथ डिस्कशन में निकल कर आया है कि जो वैक्सीन के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, वो फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 तक ही आ पाएगी। और जहां तक आपने पूछा कि दूसरी बीमारियों की हम वैक्सीन क्यों नहीं बनाते, वो इसलिए, जैसे मैंने अभी बताया कि वो इसलिए नहीं बनाते, किसी भी बीमारी की वैक्सीन बनाने के लिए साइंटिस्ट लोग और हम लोग तभी उसके लिए वो जाते हैं जब हमें लगे कि वो बीमारी या तो बहुत तेज फैल रही है, या उससे कोई बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं, या कोई बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो तभी हम किसी भी बीमारी के लिए उसको वैक्सीन के लिए कैंडिडेट बनाते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। शहबाज जी, शहबाज जी आपको आवाज आ रही है? जस्ट अ सेकंड सर। जी जी। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर शेर सिंह से। सर, जैसे आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, ठीक है सर, तो आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट जो हैं, जो हमारी सरकार है, उसको जो हमारे ऊपर ये मुसीबत आई है उसको कंट्रोल कर पाए? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कोप कर पाया है? आपने मुझसे सवाल पूछा है और मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। परंतु मेरा नाम कुछ ऐसा है कि मुझे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप जो है जनता से पूछें। जी सर। एक समय था कि लोग एडमिट होना चाहते थे, अभी लोग एडमिट होने से, कल ही मुझे एक मेरी फिजिशियन से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कल बताया कि एक पेशेंट घर पर है जिसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 75 है, जबकि ये कहते हैं कि 94 से पर अस्पताल चले जाना चाहिए। आजकल ये सिचुएशन आ गई है कि अस्पताल जाने के लिए भी लोग सोच रहे हैं। अब उसको फोबिया कहेंगे या उसको डर कहेंगे या उसको आप ये कहेंगे अवेयरनेस कहेंगे। ये अवेयरनेस और ये डर बड़ा मतलब इसमें बहुत कम ही अंतर होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो अगर मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं तो ये है कि कम से कम मैं किसी भी मेरा संतुष्टि का लेवल थोड़ा ऊंचा है, और उसके हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जो या तो बहुत ज्यादा हो जाए और वो खाली पड़ा हुआ हो, या इतना कम हो कि उसमें मारामारी चल रही हो, एडमिशन मिल ही ना रहा हो। और पहले हम सुन रहे थे कि एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, अभी सुन रहे हैं बेड खाली। लेकिन इन सबसे पहले मैं थोड़ी बैकग्राउंड में जाऊं। थोड़ी देर पहले इंदु अर्नेजा मैडम ने कहा कि हमारे यहाँ शायद डेथ बहुत कम है, और मैं जगह जगह से ये सुनता हूँ कि हमारी कोविड की स्थिति बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ डेथ बहुत कम हो रही है। मैं इन सबसे थोड़ा डिफरेंट विचार रखता हूँ, मैं सहमत हूँ। मैं आंकड़ों के आधार पे अगर बात करूँ, और मैं 10 जुलाई को जो आंकड़े मेरे थे, मैंने जब उनको देखा, क्योंकि 12 जुलाई को आपका ये होना था, तो मैंने 10 जुलाई पे जब मैं गया तो मैंने देखा कि इंडिया में जो डेथ्स हैं, एक इंडिकेटर है CFR, केस फर्टिलिटी रेट। और केस फर्टिलिटी रेट का मतलब है जितने केस पॉजिटिव आए हैं उनमें कितने % लोग की डेथ हो रही है। तो इंडिया में जो उस समय टोटल 8,22,674 केस थे, और जिनमें से डेथ 22,152 लोगों की हुई है, तो उसके आधार पे केस फर्टिलिटी रेट आती है 2.7%। मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने केस हैं उसमें से 2.7% डेथ हो रही है। और कितनी डेथ चाहिए आपको? क्या आप अमेरिका से कंपेयर करना चाहोगे या फ्रांस से, ये सबसे टॉप पे जाना चाहते हो क्या? मेरे हिसाब से ये डेथ बहुत ज्यादा है और हमें तुरंत बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे जिनकी हमें जरूरत है। फिर मैं इसी डेथ पे अगर जाऊं कि पूरे भारत की जनसंख्या में कितने लोग मर रहे हैं कोविड से या कोविड प्रमाणित से। अभी ये भी एक इशू है कि जिसको हम कह रहे हैं कोविड डेथ हुई है, वही कोविड डेथ है,
या वो भी कोविड डेथ है जो कोविड से हुई है लेकिन जिसे हमें कोविड डेथ के रिकॉर्ड में हम नहीं ला पाए हैं, या वो भी कोविड डेथ है जो कोविड जिसको हुआ नहीं है मगर कोविड की वजह से वो मर गया, इसलिए नहीं कि उसको कोविड हुआ था मगर कोविड की सिचुएशन में वो और अस्पताल में जा ही नहीं पाया। लेकिन अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो टोटल ये जो 22,152 लोग 10 तारीख तक मर गए थे, अगर टोटल पॉपुलेशन से देखें तो अभी भी 1 मिलियन पॉपुलेशन में 16 मिलियन लोग कोविड की वजह से रिकॉर्डेड डेथ हैं, जो कि बहुत किसी डिजीज से बहुत हायर डेथ रेट है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको घबराना नहीं चाहता, ये बताना चाहता हूँ कि डेथ रेट मैं कम नहीं मानता, कम से कम जो और एक्सपर्ट मान रहे हैं वो मानते रहें। और उसमें भी अगर मैं दिल्ली की कंपेयर करूं तो दिल्ली का तो और भी बहुत ही बुरा हाल है। दिल्ली में जो CFR जो पूरे इंडिया में 2.7% है, उसकी तुलना में दिल्ली का CFR 3.02% है, यानी कि लगभग आप देखें तो 0.7% ज्यादा है और यहाँ 0.7% बहुत ज्यादा होता है। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो 173 1 मिलियन में जो लोग हैं वो कोविड की वजह से मर रहे हैं दिल्ली के अंदर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो लोगों से बिल्कुल हटके की स्थिति वैसी नहीं है। और अगर मैं दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को कंपेयर करूं इसके एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से, तो महाराष्ट्र में इस समय जो पॉपुलेशन को अगर देखें तो 1809 लोग पर मिलियन के हिसाब से पॉपुलेशन में 1809 कोविड की वजह से डेथ हुई हैं अभी तक। और तमिलनाडु में केवल इसके हिसाब से 1555 डेथ 1 मिलियन पर हुई हैं, मगर वहीं दिल्ली में 5774 पर मिलियन के हिसाब से डेथ आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डेथ का आंकड़ा ये मैं टोटल बता रहा हूँ, लेकिन 173.7 पर मिलियन आती हैं दिल्ली की, और तमिलनाडु के 21.8 पर मिलियन आती हैं, और महाराष्ट्र की 79.2 पर मिलियन पॉपुलेशन में आती हैं। इसका मतलब पर मिलियन पॉपुलेशन में भी दिल्ली बहुत आगे है। एक तो इंडिया का नंबर जैसे पूरे वर्ल्ड में तीसरा नंबर आ रहा है केसेज में, और उसी तरह से दिल्ली का नंबर तीसरा आ रहा है केसेज में इंडिया के अंदर, वैसे ही दिल्ली में का डेथ में अगर पर पॉपुलेशन से या पर एरिया से भी लगाएं, पर किलोमीटर से भी लगाएं, तो हम नंबर 1 पर हैं दिल्ली के लोग। और इंडिया का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। मैं थोड़ा सा समय और लूंगा केसेज के लिए। केसेज को अगर हम देखें तो अभी भी पूरे इंडिया के अंदर करीब 0.06% के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से केसेज आ रहे हैं, यानी पर मिलियन पॉपुलेशन लें तो 592 पर मिलियन पॉपुलेशन केसेज हैं। और अगर दिल्ली का देखें तो 5744 पर मिलियन केसेज कोविड के हैं। तो इस हिसाब से भी देखे जाएं तो हम अभी इतना पीछे नहीं है। और वैसे भी चलिए मान लीजिए मेरी बातें सारी गलत, एब्सोल्यूट नंबर में ले लीजिए, एब्सोल्यूट नंबर में भी हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। तो मैं फिर आपकी पुरानी बात पे आ जाऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर हमको अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन 3 टर्म्स। पहली टर्म, जब जो चाहिए उस समय वो अवेलेबल हो। दूसरी टर्म, जब जैसा चाहिए वैसा अवेलेबल हो। जब जितना चाहिए का मतलब आज डेथ ज्यादा हो रही है तो वेंटिलेटर ज्यादा चाहिए, उस तरह से। और जब जैसा चाहिए कि जब हमें जरूरत थी एयरपोर्ट पर तब वो था क्या, जब हमें जरूरत थी केस डिटेक्शन की तो उतने हुए क्या, और जब हमें आज जरूरत थी वेंटिलेटर की जब डेथ हो रही थी तो वो था क्या, और जब हमारे केसेस अब इतने बढ़ रहे हैं और आगे हमें जरूरत है केस टेस्ट की, तो मैं टेस्ट की भी बता दूं आपको। टेस्ट की बात डॉक्टर साहब टेस्ट से संबंधित मेरे पास एक और प्रश्न है। मेरा एक इंदु जी से प्रश्न बताऊंगा जी, तब मैं वो मैं तब बताऊंगा कि टेस्ट की हालत भी हमारी कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब की बात सुन करके मुझे मलिकजादा मंसूर अहमद का एक शेर याद आता है
चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो दिल्ली का हाल अच्छा नहीं है और इंदु जी कहेंगे कि ये एंजाइटी बढ़ रही है, ये ठीक नहीं है। तो अगला प्रश्न इंदु जी से पूछते हैं कि इंदु जी किस तरीके से डॉक्टर धर्मेश जी ने कहा कि हमको अपना स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए गाइडलाइंस है कि फ्रूट्स खाएं, फ्रेश चीजें खाएं और हम लोग फैट्स कम से कम लें, एक्सरसाइज करें। आप थोड़ा सा गाइड करिए कि किस तरीके से हम अपने आप को मेंटली फिट रख सकते हैं इस टफ टाइम में। डॉक्टर साहब अनम्यूट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब अनम्यूट। या जैसा अभी डॉक्टर धर्मेश लाल ने भी बताया कि 2021 से पहले हमें वैक्सीन मिलने वाली नहीं है, और डॉक्टर शेर सिंह भी बता रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, चीजें अवेलेबल नहीं है। ऐसा हमेशा रहेगा और ऐसा पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। वी कैन नेवर बी completely prepared for any situation. True. But as a common man or as a common woman or as a common person, I would advise people to focus on what we have rather than focusing on what we don't have. And I would request all the leaders everywhere, be it in the medical profession, be it in the political front or anywhere, we got to create a feeling among people that we can deal with it. If we talk something like this, that we cannot deal with it and things are not in our control, then we are in fact actually increasing the anxiety among people. Then we are doing disservice to the society. So as a psychologist, I have taken more than 35 webinars, just helping people understand that don't worry, you can manage it. Even if I go by the Stephen Covey's philosophy of circle of concern and circle of influence, there will be 100 things that will be of circle of concern, which are true, like Dr. Sher Singh is saying, facilities, infrastructure, readiness. I fully agree. I'm not denying the fact. But at the same time, if I will focus on these things, and if I will ask my people to focus on these things, chances are the society is going to go in anxiety and we are going to have more patients than healthy people. I would rather encourage people to focus on what can I do to protect myself and my family. And I think tools are very simple and easy. If I can bring this awareness among people to keep themselves safe, keep indoor, only go out when it is very essential. Earning is important. I think it is important for especially those who are kind of daily wagers. People like you and me are not, going to die of hunger. Let us spread this message across. Please stay fit. Please protect yourself, protect your family. And there are not very big things required. If I can wash my hands on regular basis, if I can avoid going to crowded places, if I can use mask, which is just negligible, we got to actually bring this information to each and every person. And then, of course, whatever, and I do get to see a lot of messages where things are being tried, by the societies and the residential welfare societies, where they're trying to bring things where they know people just need to stay indoor, isolate themselves, even if they have been identified with COVID positive. And I know a number of people who have isolated themselves. They are constantly checking themselves. They are in touch with the hospital. They are checking their parameters. They are checking their vitals. And in case everything is normal, they can just stay indoor and isolate themselves. So what I would say, crying about a problem will not help. I would request everybody to come up with solutions and give innovative and creative solutions if you really have wonderful ideas. I think my focus would be on that. I would not like to use this platform to create more anxiety and depression among people. I would rather like to tell them, please protect yourself, look after yourself. Health is your responsibility. I would not give it to you or to anybody else to take charge of my life. It's my responsibility to look after myself and my family. And I need to be, vigilant about it. I think that's what is my message. I hope that gives very well put, डॉक्टर इंदु जी. शेर सिंह जी और धर्मेश लाल जी से दोनों से मेरा एक प्रश्न है और आप लोगों से प्लीज थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके दोनों ही लोग बताएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा है. आप लोगों के डेटा जी डॉक्टर पहले थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा धर्मेश जी से पहले. माफी चाहता हूँ धर्मेश जी, चूंकि इंदु जी ने कहा और उससे पहले मुझे हटने से पहले एक शेर कहा गया था, तो पहले तो मैं भी एक शेर कहना चाहूंगा, क्योंकि नाम भी कुछ शेर सिंह है और उन्होंने शेर कह के मुझे जगह भी दिया. तो एक गालिब का शेर है
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो इंदू जी ने जो कहा, इंदू जी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का मेन काम होता है अवेयरनेस करना, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगा, खाली अवेयरनेस करते रहना और हकीकत नहीं जानना, अभी तक हम इन्हीं ख्यालों में खोए हुए हैं कि वी आर डूइंग वेल, वी आर डूइंग वेल एंड वी आर डूइंग वेल। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमको करना अच्छा है, हमको करना अच्छा है, हमको करना अच्छा है। और मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं या हमारे फैसिलिटीज़ नहीं थी। मैंने कहा कि हमें 3 चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ चाहिए उतनी है या नहीं, और जो चीज़ कब चाहिए, कैसे चाहिए। बाकी मैं इंदू जी की इस बात से सहमत हूँ कि हमेशा यही स्थिति रही है, हमें हमेशा कमियों का सामना करना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, हमें बनाई है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पुरानी स्ट्रेटेजी, ये अब तक की स्ट्रेटेजी हमारी सक्सेसफुल हैं और उससे हम बिल्कुल ठीक हैं, तो सर्टेनली आई एम सॉरी, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आप जीते रहें इन ख्यालातों में, इन्हीं ख्यालातों में यूएस जीता रहा था, इन्हीं ख्यालातों में इटली जीता रहा था, पूरा संसार शुरू में इन्हीं ख्यालातों में जी रहा है। मैं कम से कम इन ख्यालातों में नहीं जी रहा हूँ और इसी कारण शायद मैं आज नेगेटिव हूँ। लेकिन साथ ही साथ जो आपने कहा पॉजिटिव, तो इस कोरोना ने लोगों के मायने ही बदल दिए हैं। लोग पॉजिटिव को खराब समझने लगे हैं, नेगेटिव को अच्छा समझने लगे हैं। लोग हैंड वॉशिंग को इतना अच्छा नहीं समझते जितना सैनिटाइजर को अच्छा समझने लगे हैं। अपने बच्चों से हम अल्कोहल से दूर कहने को कहते थे, हमें अगर जरा सी स्मेल आ जाए तो पता लग जाता था कि अल्कोहल है, लेकिन आज जो है हर जगह अल्कोहल ही अल्कोहल है। डीओ में भी अल्कोहल है, सैनिटाइजर में भी अल्कोहल है, रूम फ्रेशनर में भी अल्कोहल है। तो चलो, अगर अल्कोहल के नशे में अगर हम कहना चाहें तो कहते रहें। आई एम सॉरी कि मैं अपने पब्लिक हेल्थ पॉइंट से थोड़ा सा हट रहा हूं, लेकिन अगर आप समझें तो मैं पब्लिक हेल्थ पॉइंट पर ही ये कहना चाह रहा हूं कि बेसिकली पब्लिक हेल्थ को तो हटा ही दिया गया है और यही वजह है कि हम इस स्थिति में हैं। मेरा एक डायलॉग मैं बहुत 3 महीने 4 महीने से कह रहा हूं कि इफ ए ऑर्थोपेडिशियन इज आस्क्ड टू डू द फोरसेप्स डिलीवरी, the outcome will be the similar what is here in COVID-19. Anyway, please continue, Dr. Dharmesh. I will say again. तब तक आप बताइएगा उनके स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब। जी धर्मेश जी। Can you repeat the question please? या मेरा क्वेश्चन ये था कि किस तरीके से इनको बैलेंस करें। कोविड ने जो हमें मेंटल इलनेसेस दे रहे हैं और एंजाइटी हो रही है डेटा सुन करके, और साथ में मेडिकल चीजें भी करनी है, तो आपके व्यू से किस तरीके से गवर्नमेंट इसको मिटिगेट कर सकती है कि हम लोग इसको बैलेंस आउट करें? क्या मेरे मतलब जैसे मेरे दिमाग में कुछ आता है कि क्या गवर्नमेंट ने कोई मेंटल इलनेस से रिलेटेड हॉटलाइन चलाई है या कोई इंस्टीट्यूशनल हेल्प दे रही है गवर्नमेंट? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी हेल्पलाइन स्टार्ट की हैं साइको सोशल सपोर्ट देने के लिए जी। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि शायद दिल्ली गवर्नमेंट में ने भी अपनी कोई इस तरह की हेल्पलाइन सर्विसेज स्टार्ट की है, जहां पर आप कॉल सेंटर होता है उनका, जहां पर आप फोन कर सकते हैं और अपने इश्यूज उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं और फिर वो आपको आगे गाइडेंस दे सकते हैं। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा सा वो पुराना जो अभी आपका सवाल चल रहा था, जो डॉक्टर इंदू ने बोला और डॉक्टर शेर सिंह ने बोला, उस पर थोड़ा सा मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। उसमें मेरा कहना यहाँ पर यह है कि देखिए, जहां तक कोविड-19 का सवाल है, मैंने थोड़ी देर पहले भी अपने शुरू के इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बोला था कि हम सबको, चाहे हम सरकार के पार्ट हैं चाहे हम कम्युनिटी के पार्ट हैं, हमारा सबका एक ही ध्येय होना चाहिए कि इसको हम होने से कैसे बचाएं। अगर आपने मेरी शुरू की बात ध्यान में रखी होगी तो मैंने कहा था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो भी सब बेस्ट इसका जो स्ट्रेटेजी है वो है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, मतलब बिना दवाई के जो भी हमें करना है वो करना चाहिए। तो हमें समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी इसी बात पे ध्यान देना चाहिए। अब वो कैसे कर सकते हैं, अब उसमें मैं 2 मिनट में सारा बताऊंगा आपको। उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जहां तक सरकार का और जो एजेंसीज का रोल है वो ये बनता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट करे, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम टेस्ट कर पाएंगे
उतना हमें पता चलेगा कि किस किस आदमी को, किस किस व्यक्ति को कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है। तो बहुत बार क्या होगा कि कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है लेकिन पता नहीं चलेगा क्योंकि कोई सिम्टम नहीं आएंगे। तो अगर हम इस तरह का कोई सिस्टम बना लें फटाफट निकाल के कि भाई इसको हो गया और इसके बाद इसको फटाफट कहीं हम ऐसी जगह पे कर दें या उसको घर पे हमें अलग कर दें, तो उससे क्या होगा कि जो इसका स्प्रेड है वो बहुत कम हो जाएगा। तो एक तो ये गोल्डन स्ट्रेटेजी है और ये वाला मॉडल काफी जगह पे वर्ल्ड ओवर में यूज भी हो चुका है और इसके काफी सक्सेस भी आ चुके हैं। अभी रिसेंटली आप सब लोगों ने धारावी के बारे में पढ़ा होगा कि धारावी में इस वाले मॉडल को काफी इफेक्टिवली यूज किया गया कि उन्होंने घर घर गए उनके वर्कर्स और उन्होंने खुद जाके प्रोएक्टिवली लोगों को स्क्रीन किया और जिसको भी उन्होंने पाया कि पॉजिटिव है या सिम्टम है उसको फटाक से उन्होंने इमीडिएटली आइसोलेट कर दिया जिससे कि और लोगों को ना हो। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि जहां तक डॉक्टर इंदु ने बताया एंजाइटी के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में, इसमें क्या करना चाहिए कि एंजाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है। एंजाइटी का रोल कैसे है कि अगर मान लीजिए पेशेंट को कोविड-19 हो गया और अगर उसको एंजाइटी भी उसके साथ डेवलप होती है, उसके परिवार वालों को भी डेवलप होती है, तो इसमें मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इससे इम्यूनिटी पे भी फर्क पड़ता है, नेगेटिव फर्क पड़ता है। जबकि कोविड-19 पेशेंट्स के लिए इम्यूनिटी का होना बहुत जरूरी है। तो इस समय क्या करना चाहिए पेशेंट को? कुछ आसन करने चाहिए, मेडिटेशन करने चाहिए और जो माइल्ड पेशेंट की बात कर रहा हूं, जो इनका घर पे आइसोलेशन चल रहा है, उनको इस तरह से करना चाहिए और कुछ ऐसे एंगेजमेंट करना चाहिए कि जिससे आपका इन सब चीजों से ध्यान हट सके और आप साइकोलॉजिकल बेटर फील कर सकें। तो ये चीजें बहुत जरूरी है एहतियात पे करने के लिए। और बाकी तो फिर उसके बाद अगर पेशेंट कोई सीरियस है कुछ है तो फिर बाकी तो उसका इलाज हॉस्पिटल में होता ही है, तो उसके बारे में तो मैं कुछ यहाँ पर बोलना नहीं चाहूंगा। तो अभी इसके लिए मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा अपने आप। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब। अब मेरा अगला प्रश्न जो है वो डॉक्टर इंदु से फिर से होगा। डॉक्टर साहब मैं पेशे से वकील हूं और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स और जूनियर्स ऐसे हैं जो जैसे साथ के वकीलों के कोर्ट्स बंद हैं तो बहुत एंजाइटी है और मेरे पास फ्रिक्वेंटली मैसेजेस आने लगते हैं क्योंकि हम लोग पेशाई तौर पे काउंसलर्स हैं। a lot of people are feeling suicidal. So I get messages like, sir, I'm feeling suicidal, or Prakash, I'm feeling suicidal. How should we actually deal with this particular trait or act by a person? Such cases, immediate medical intervention should be made. Patient should consult psychiatrist, take medicines, report this. Even the family should actually make sure that the patient is under proper medical care, is getting medicine, and also the family needs to be really vigilant about it, because anybody who is feeling suicidal, there's a possibility that the person might do it. If you remember this case of Dr. Arvind, I think 2 days ago, right, we read in the paper at AIIMS Junior Resident. Yeah. So this medical graduate had depression for the last 7-8 months, and he was diagnosed for it. He was admitted couple of times at AIIMS, but any small, negligence, or maybe not realizing how important it is to keep an eye on the patient can actually end up into killing. So we really got to be very, very vigilant about it. It should never be taken lightly. Even in my own practice, I have had couple of cases where the patient reported suicidal. I informed the family that you need to be very vigilant. The family was not able to, keep a strict vigilance on the patient. And unfortunately, we lost the patient. So this has to be taken very seriously. Do not just advise to go to, don't advise the person to go and meet the doctor, because that person will not have insight to go on his own to take help. At this moment, in case if somebody is talking to you, you must immediately report to the family, tell them about the seriousness of the condition, and ask them to make sure that the patient starts getting medication. That's the best way to handle immediately. Right. The last question we will take is by Mr. Shehbaz Qasim. Shehbaz ji, please ask the question, and then we'll open the floor for the people to ask questions. My question is to धर्मेश जी. धर्मेश जी, जैसे हमने देखा अभी पिछले 3-4 महीने में जो भी रहा, अप्स एंड डाउन्स रहे, हमने कहा कि हमने कवर कर लिया, 15 डेज में कवर कर लेंगे, सबने सब कुछ किया, किसी ने भी ये रेज नहीं कर रहा कि हमारा जो हेल्थ का बजट है, इट्स नॉट देयर. हमें वेंटिलेटर मंगाने के लिए ऑल ऑफ सडन अपनी आवाजें उठानी पड़ रही हैं कि हमें वेंटिलेटर चाहिए,
हमें कहना पड़ रहा है कि बेड चाहिए, जैसे आप पॉलिसीज में है, तो ये क्या हम सही प्लेटफॉर्म पर रेज नहीं कर रहे हैं? क्या हमें हमारा हेल्थ बजट बढ़ना चाहिए? सहवाग जी, ये जो सवाल है ये अभी से ही नहीं आ रहा। ये सवाल तो हम लोग कम से कम 20 साल से उठा रहे हैं कि जो हमारा बजट है हेल्थ का वो कम से कम जीडीपी का 2.5% हो जाना चाहिए, 2.5%, जो कि अभी आज की तारीख में 1.4% है। तो ये सवाल तो काफी दिनों से चले ही जा रहा है, और हम लोगों को, जैसे डॉक्टर शेर सिंह और मैं और हम जैसे लोग जहां भी जिस मंच पे भी मौका मिलता है, हम इसको बहुत एग्रेसिवली उठाते हैं कि ये होना चाहिए। और मैं काफी आशावादी हूं कि अब कहते हैं ना, बिल्ली के भाव शिका टूट जाएगा, तो मुझे लगता है, जो मेरी अंदर की गट फीलिंग है, कि ये कोविड के बाद हो सकता है कि सरकार इस तरफ दोबारा से वापस आएगी और डेफिनेटली इसका बजट बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। With this, we will end the session and then we'll open the floor for individual question and answers. एक शेर मुझे याद आ रहा है शायद, जिससे डॉक्टर इंदू अग्री ना करें, लेकिन किस मनस्थिति में जाकर के शायर ने लिखा है, ये बहुत अच्छे से वो भी समझ जाएंगी और बाकी दोनों अन्य डॉक्टर्स भी समझ जाएंगे। दीवारों से मिलकर रोना, अर्ज किया है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। तो ये कोविड के लिए बिल्कुल मुफीद शेर है मेरी समझ में। और अब हम लोग क्वेश्चन रेस करेंगे, तो जिनको भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज अपना हैंड रेस कर दें चैट बॉक्स में। वी विल गिव देम अ अपॉर्चुनिटी टू आस्क देम लाइव ऑन द वीडियो। पखर, मैं जो कुछ क्वेश्चंस हमारे व्यूअर्स ने ऑलरेडी चैट बॉक्स में भेजा हुआ है, तो आप पहले उनको एक बार देख लीजिए और फिर उसके बाद जितने लोग हैं वो चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, तो मैं सबसे पहले सागर नेमीवाल दाता रामगढ़ जी का क्वेश्चन लेना चाहूंगा। इनका क्वेश्चन डॉक्टर शेर सिंह जी से है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से इससे बचा जा सकता है? सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि अगर इतने बड़े अभिनेता भी इससे नहीं बच सकते, तो हम मिडिल क्लास व्यक्ति इस टेंशन से कैसे बच सकते हैं? दो बातें हुई कि एक तो कोरोना से कैसे बचा जा सकता है और एक हुई कि कोरोना के टेंशन से कैसे बचा जा सकता है। जी, ग्रामीण अंचलों में डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, ग्रामीण अंचलों में। और कल ही मेरी बात अंडमान निकोबार हो रही थी और मैं उनसे कह रहा था कि अंडमान निकोबार में तो बचना और भी आसान है, पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं अंडमान निकोबार में 15 साल तक वहां पर रहा। तो देखिए, ग्रामीण अंचलों में एक तो पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होती है। मैं दो बातें कहूँगा शॉर्ट में कि एक तो जो चीज़ें उनको रोकती हैं इसके बचने से, वो हैं कि उन लोगों में मेल मिलाप ज़्यादा होता है, गले ज़्यादा मिलते हैं और बहुत करीब करीब रहते हैं, दूर रहना पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ उनको समझनी होगी कि इसमें हमें दिल को करीब रखना है, शरीर को थोड़ा दूर रखना है। और जहाँ तक सफाई का ख्याल है तो उनको ये समझाना होगा कि जैसे दिल साफ रखना है वैसे शरीर को भी साफ। तो साफ से मतलब है हैंड वॉश करते रहना है, मुंह धोते रहना है। अब ये समझ लो कि हर समय हमको मंदिर में जाना है या धार्मिक स्थल पे जाना है, धार्मिक स्थल पे जाओ मत। तो जाने के लिए क्या करना है, हाथ धोने हैं, मुंह धोने हैं, या स्नान कर सको तो स्नान करने हैं, साफ कपड़े पहन सको तो कपड़े पहने। और साथ साथ डॉक्टर धर्मेश जी ने थोड़ी देर पहले बताया था और सभी लोग बता रहे हैं कि इम्यूनिटी के लिए योगा करो, आप फ्रेश खाना खाओ, आप वो सारी चीज़ें खाओ जिससे कि इम्यूनिटी आपकी बढ़े और आप स्वस्थ रहो। मैं फिर बार बार घुमा फिरा के एक ही बात कह रहा हूँ, बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूँ जो बहुत गंभीर भी है, कि हेल्थ के जितने भी पुराने नियम हैं, आप तो कहते हो उनको छोड़ दो, मैं कहता हूँ उन्हीं को ले आओ, आप ठीक हो जाओगे। पुराने सारे हेल्थ के नियम, सफाई रखना है, स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आपको कहने से काम नहीं चलेगा, अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस में चाहिए, एक्शन चाहिए। और उसके लिए पास पास जाना पड़ेगा। एंजाइटी भी कम हो जाएगी अगर हम वो एक्शन करने लग जाएंगे। तो
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम करते नहीं है, सिर्फ सोचते हैं। फिर दूसरी बात आपने कही कि गांव में वो कैसे रोका जा सकता है, के साथ साथ में कि हम उनको भी ये समझाएं कि हम ज़्यादा जो शहर में भी है कि हम ज़्यादा ऐसी जगह पर ना जाएं जहाँ सामूहिक जगह, वैसे गांव में कम चांस होते हैं, डेंसिटी कम होती है, तो गांव में फैलने के यही बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होता है। डेंसिटी भी कम होती है, उनका आवागमन या मूवमेंट भी कम होता है। बस उनको यही है कि थोड़ा सा डिस्टेंसिंग और थोड़े हेल्थ के पुराने नियम, मास्क भी लगाने की जरूरत नहीं है अगर पूरे घर में कोई नहीं है तो, कि मास्क लगाते फिर मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ लोगों से। मास्क के लिए भी बहुत कुछ चला, सैनिटाइजर के लिए भी चला, तो मैं फिर ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप अकेले हैं, आसपास कोई नहीं है, तो मास्क को लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है जहाँ पे रिस्क फैक्टर नहीं है हर समय। तो ये रहा मेरा कि गांव के अंचल से। दूसरा क्वेश्चन क्या था, वो रिपीट करेंगे जी? दूसरा उनका क्वेश्चन उसके था तनाव से जी। तनाव से तो एक ही तरह से बचा जा सकता है कि हमारी अवेयरनेस हो और हमारे कंसेप्ट्स माइंड में क्लियर हो कि भाई हमारी ये क्या स्थिति है और हमें क्या करना है, और बाकी फिर वो गीता का ज्ञान है कि हम जो कर सकते हैं वो करें, बाकी सब छोड़ दें, चिंता ना करें और बाकी सब तैयारी करें जो हम कर सकते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि वो एक हाथ धोते रहें, शरीर धोते रहें, कपड़े सफाई रखें, खाते पीते रहें, इम्यूनिटी मेंटेन रखें, पानी जितना हो सके उतना पीते रहें। मैं जो बता रहा हूँ वो खाली इसी के लिए नहीं, सभी बीमारियों के लिए है। जैसे बाबा रामदेव बताते हैं ना सभी बीमारियों के लिए, तो हम पब्लिक हेल्थ वालों के यही कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ सारी चीज़ों में इस्तेमाल करें, खूब पानी पिएं, जितना पी सकते हैं पिएं, और जितनी हवा ले सकते हैं शुद्ध वो लें, और जितना शुद्ध खाना खा सकते हैं खाएं, खूब सोएं, आराम करें, और फिर जितना बाकी टाइम बचे उसमें काम करें। बस इतना ही तो है, 3 बातें ही का ध्यान रखना है कि आसपास की दूरी जरा रखें मेंटेन, और अगर कोई ज़्यादा पास आए तो अपना मास्क का लगा लें, और नहीं आए तो मास्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सैनिटाइजर से ज़्यादा हैंड वॉश पे ज़रा ध्यान रखें, और जहाँ हैंड वॉश संभव नहीं है वहाँ सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। लेकिन हैंड वॉश, माउथ वॉश, ये सारे वॉशेज ना धोइए तो पवित्र हो जाएगा शरीर भी, मन भी, आत्मा भी, सबको बस धोते रहिए, यही सिखाना चाहता है कोरोना। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। अच्छा प्रखर, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, मिस्टर अरमान अली ने ज्वाइन कर लिया है हमें जी। अरमान अली जी आपका स्वागत है। वेलकम। शुक्रिया, माफी चाहूंगा, मैं पहले फेसबुक लाइव में चला गया था, फिर इधर आ गया, फिर तो परेशानी हुई थी लॉगिन। तो जो हमारे गेस्ट हैं उन सबको मैं बता दूं, अरमान अली जी जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डिसेबल्ड पीपल की जो नेशनल सेंटर है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अरमान जी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे क्योंकि समय खत्म होने वाला है। जी 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 ठीक है, मैं जल्दी से आपसे पूछ लेता हूँ जी। तो आई होप के आप जल्दी से उसका आंसर दे पाएंगे। Am I allowed? Yeah, please go ahead, sir. Please go ahead. अच्छा ठीक है सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि हम किसको डिसेबल कहेंगे, क्योंकि जो हम इस वक्त जो हमारे गेस्ट हैं उनको आप अगर बिल्कुल शॉर्ट में बता पाएं किसको हम कहेंगे, हु इज डिसेबल, हु इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज, कैसे कहेंगे हम, क्योंकि हम लोगों का ज्ञान नहीं है इतना उसको लेके। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत जरूरी है ये जानना कि विकलांग कौन है। तो कोई भी व्यक्ति जिसको चलने फिरने में या किसी हाथ से या पांव से या देखने में या सुनने में और या किसी भी चीज को समझने में अगर बहुत लंबे समय तक उसको तकलीफ होती है, अगर कोई भी व्यक्ति आप समझ लीजिए उसको पाँव में उसको एक्सीडेंट हो जाता है, उसको फ्रैक्चर हो जाती है पाँव में, और ये लंबे समय तक घर पे रहना पड़ता है, या प्लास्टर है उनको, या सर्जरी है, या पैदाइशी किसी को कोई तकलीफ है, जैसे कि लोग विकलांग होते हैं और जो उनको देखने में, चलने में, फिरने में, सोचने में या सुनने में असुविधा हो लंबे समय तक, और इन असुविधा के कारण वो किसी भी सामान्य जो कार्य होता है, जैसे स्कूल जाना या किसी नौकरी में जाना या किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना में उसको अगर वो किसी आम व्यक्ति की तरह नहीं आ जा सकता है,
उस अवस्था को हम कहेंगे विकलांगता। ऐसा विकलांगता नहीं है कि उस व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति में किसी एक प्रकार की असुविधा हो सकती है जिसके कारण पैदाशी हो सकता है, या किसी कारणवश बीमारी के कारण या एक्सीडेंट के कारण या किसी भी कारण उसमें चलने फिरने में या देखने में, सुनने में, समझने में कोई अगर परेशानी है, और उस परेशानी के कारण वो समाज में किसी अन्य व्यक्ति के तरह एक ही बराबर अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो उस अवस्था को हम विकलांगता कहते हैं। अच्छा सर, जैसे जी हमारी दिल्ली सेक्रेटरी अवनी जी एक क्विक पॉइंट मेक करना चाहती हैं, प्लीज। जी अरमान अली जी, आपकी बात पे ही मैं जोड़ना चाहूंगी, और शहबाज छोटा सा एक बात मैं कहना चाहूंगी। हम जो भाषा प्रयोग करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि मैं जानती हूँ इंटेंशन हमारा नहीं होता, लेकिन हम डिसेबल्ड बुलाने की बजाय डिफरेंटली एबल्ड बुलाएं। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो यदि चल नहीं सकते, ठीक है, या वो व्हील चेयर पे हैं, हम जब उन्हें कहते हैं कि वो डिसेबल्ड हैं, तो हम समाज में एक ही संदेश भेजते हैं कि जो नॉर्मल है वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन हम देखें यदि कुछ देशों में जिसमें उन्होंने डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए काफी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो ये कहते हैं कि यदि हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे पार्लियामेंट में यदि इन लोगों के लिए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन नहीं किया गया है, तो ये उन जगहों पर जा ही नहीं सकते। तो क्यों ना हमारी बसें, हमारी ट्रेनें, हमारा सारा पब्लिक स्पेस और प्राइवेट स्पेस इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि इन लोगों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज न किया जाए, इसको डिजाइनिंग में इंक्लूड किया जाए। ये उन लोगों के लिए भी है जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जिन्हें किसी और तरीके की समस्या है। तो ये लोग डिसेबल नहीं है, ये लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनमें ऐसी क्षमताएं हैं जो कभी बाहर नहीं आ पाती, जो कभी निखर के नहीं आ पाती, क्योंकि हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन लोगों के बारे में सोचते नहीं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो मैं इस चर्चा में ऐड करना चाहती थी। शहबाज, ओवर टू यू। थैंक यू Avni, thank you Avni. And please go ahead. As you said, it was not meant in that way. और अरमान जी से मेरा यही सवाल था कि सर पिछले 4 महीने में हर जो नॉर्मल व्यक्ति भी है वो भी बहुत परेशान है, ठीक है, घर से नहीं निकल रहा। शहबाज, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि नॉर्मल कौन है? क्या व्याख्या है नॉर्मल होने की? नॉर्मल होने की व्याख्या क्या है और डिफरेंटली एबल की व्याख्या क्या है? नहीं सर, उसको सबसे बड़ी बात है ना कि आप किसी भी चीज को उस समस्या को अगर हम एक्नॉलेज करते हैं, डिसेबल्ड किसको कहते हैं हम? उसको डिसेबल्ड कहते हैं, क्योंकि नहीं आप मेरी बात समझिए, मैं बहुत ही डिफरेंटली एबल कौन है? आज नरेंद्र मोदी डिफरेंटली एबल्ड है मनमोहन सिंह से, मनमोहन सिंह डिफरेंटली एबल्ड थे वाजपेयी जी से, अब वाजपेयी जी डिफरेंटली एबल्ड थे नेहरू से, आज विराट कोहली डिफरेंटली एबल्ड है सचिन तेंदुलकर से, सचिन तेंदुलकर डिफरेंटली एबल्ड है ब्रायन लारा से। लेकिन जिस व्यक्ति को शहबाज जी ने बोल लेने मेरी बात सुनिए शहबाज, ये बहुत जरूरी है हमको। अगर हम उसको नहीं कह रहा था, उसको हरिजन नहीं, अगर हम हरिजन कह दे तो बोलने दीजिए। क्या हम दिव्यांग कह दे तो विकलांग लोगों की समस्या हल हो जाएगी? बहुत जरूरी है हम इसको समझ पाए, क्योंकि विकलांगता को देख के ही आप उसको स्कूल में एडमिशन नहीं देखते हैं, आप उसको एक जॉब नहीं दीजिएगा, क्योंकि उससे पूछिएगा नहीं कि भाई आपको पढ़ाई लिखाई में क्या ये जॉब है। सो दिस माइंडसेट, who is differently abled? Everybody is differently abled, but opportunities जिसको नहीं मिलती हैं वो कभी एबिलिटी नहीं दिखा पाएगा। मैं कहता हूँ विकलांग लोग वो हैं, आज भारतवर्ष में 75% बच्चे जो विकलांग हैं वो स्कूल में है ही नहीं, तो किस रूप से वो आगे बढ़ेंगे, कब उनको नौकरी मिलेगी, कब वो आगे बढ़ेगा, उसका अरमान जी सॉरी टू इंटरजेक्ट इन बिटवीन, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, और अवनी जी और शहबाज जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या ऐसी कोई स्टडी हो रही है या किसी देश में हुई है जिससे पता लगता है कि डिफरेंटली एबल्ड, डिसेबल्ड, जिस भी नोमेनक्लेचर से हम उनको बुला लें, ऐसे जो भी व्यक्ति है वो कोविड लॉकडाउन से या कोविड से ज्यादा अफेक्टेड है? बीमारी से नहीं कह रहा हूं मैं, लॉकडाउन और उसके मेंटल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। हमने खुद एक रिपोर्ट निकाली जिसको कहते हैं
लॉक्ड डाउन एंड लेफ्ट बिहाइंड। जो हमने निकाला, जो भारत में जो पीपल विद डिसेबिलिटी है, जो विकलांग व्यक्ति है, उनको इस लॉकडाउन के दौरान क्या असुविधा हुई, क्या परेशानियों से उनको जाना पड़ा। वी हैव कम आउट रिपोर्ट, इट इज ऑन आवर वेबसाइट। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस रिपोर्ट में मुझे पता चला कि 70% से ज्यादा लोग ऐसे थे कि जिसको राशन ही नहीं मिला। 70% से ज्यादा। वो लोग हैं कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमने सवाल क्या पूछा, और बोलते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जब समझाते हैं कि आपको ये परेशानी है या वो परेशानी है, तब जाके बोल पाते हैं लोग। तो हम किस देश की हम बात कर रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में लॉकडाउन या कोविड के वक्त ऐसा हुआ क्योंकि जो विकलांग व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा पीड़ित है। क्योंकि हमने जो समाज को बनाया है, ये सोच के हमने नहीं बनाया कि यहाँ विकलांग व्यक्ति भी रहता है। जो विकलांग व्यक्ति है उसको हम हमेशा से एक दया का पात्र सोच के चल रहे हैं हम, कि हमारे पास होगा तो हम दान करेंगे। हम आज सरकार क्या करती है, आज कोई भी सरकार हो, पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। डिसेबिलिटी इज अ वेलफेयर इशू, इट इज नॉट अ ह्यूमन राइट्स इशू। आप कितने बच्चे देखते हैं, आप बाहर निकल जाते हैं, अगर घर से बाहर निकलते हैं, आप बैंक में या सिनेमा हॉल में या मार्केट में या स्कूल में या आपके ऑफिस में, कितने विकलांग लोग को आप देखते हैं। भारत में सेंसस के मुताबिक 2.5 करोड़ लोग होंगे जो विकलांगता हो है। 2.5 करोड़ लोग आपको कभी दिखते हैं सड़क पे? आपके स्कूल में थे, कितने थे? मुश्किल से 1-2 होंगे। तो बहुत ये बढ़िया बात आपने तो अरमान जी कही। दिखाई देता है हमको, क्योंकि हम उनको कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड। हम कहते हैं कि ये हमसे बहुत भगवान का इन पे आशीर्वाद है और वो घर पे ही रही है। तो क्योंकि उनकी जो जरूरतें हैं, क्या हमारे बसेस ऐसे बनी हुई है, क्या हमारे फुटपाथ ऐसे है जो हम जा पाए? और मैं दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता और बैंगलोर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, क्या एक विकलांग व्यक्ति या बच्चा पैदा होता है, क्या उसको हम सामान्य बच्चे की तरह उससे प्यार मिलता है उसको? क्या घर में उसको लालन पालन होता है? उसको बच्चे फेंक देते हैं, मार देते हैं। ये होता है हमारे देश में। तो इस प्रॉब्लम को हम जब तक एक्नॉलेज ना करें, जब तक हम नहीं करें कि ये एक ऐसा इशू है which needs our attention, which needs our push, we will not solve it. क्योंकि हम एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि चलो डिफरेंटली एबल्ड है तो बात खत्म है, सब चल ही रहा है, भगवान ने इसमें कोई शक्ति दी है, दिखाई नहीं देता होगा तो हाथ में बहुत ताकत होगी या बस 6 सेंस होगा, चल नहीं पाता है तो हाथ से चल पाता होगा, हाथ नहीं है तो पांव से लिख पा रहा होगा। इट्स अ जोक। अच्छा अरमान जी, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। अभी जैसे ये लॉकडाउन का पीरियड रहा, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा रहा है हमारी इसके लिए? कुछ नहीं रहा है। बहुत आज तक कुछ नहीं मिला। सरकार ने 1,000 रुपए का पेंशन अनाउंस किया था, जो 3 महीने का 333 रुपीज करके 3 महीने जोड़ेंगे 1,000 रुपया जो मिलना चाहिए था। अगर आप मान लीजिए करीब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं राजस्थान का, तो ये एक ऐसा स्कीम है जो उन्हीं लोगों को मिलता है। ये राजस्थान का एग्जाम्पल मिलता है, बट ये जो स्कीम है उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिसकी विकलांगता 80% से ज्यादा है और वो बीपीएल कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। और भारत में एनएसएसओ की जो रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया है, उसकी जो रिपोर्ट है 2018 की, वो कहती है कि सिर्फ 28% लोग ऐसे हैं जिसकी विकलांगता की सर्टिफिकेट है हमारे देश में। जो विकलांग है सिर्फ 28% लोग ऐसे हैं जिनको सर्टिफिकेट है। तो इस हालात में तो कितने लोग मिला होगा? अरमान जी एक काम करते हैं। शहबाज जी, अरमान जी जी, मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा अरमान जी की। मैं एक बात जरूर मैंने देखी, बीच में ऑब्जर्व हुई कि एक सर्कुलर आया आपके डिपार्टमेंट से कि ऐसे डिसेबल्ड या अदरवाइज एबल्ड लोगों को कोविड ड्यूटी में ना लगाया जाए। तो ये तो हमें मिला और वो हमने इम्प्लीमेंट भी किया, तो इट वाज ए गुड मूव। लेकिन उससे हमें कई नुकसान ये हुए कि ये पता नहीं चला कि कोविड ड्यूटी किसको कहेंगे। एक व्यक्ति जो ऑफिस में काम कर रहा है, ऑफिस का क्लर्क है, और क्या उसको भी हम कोविड ड्यूटी मानेंगे क्या? वो सब अलग इश्यूज हैं। लेकिन यहाँ के लिए मैं ये कहूँगा कि सरकार का कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं था। आपकी मिनिस्ट्री से ये सर्कुलर आया कि उन्हें कोविड ड्यूटी में ना लगाए, तो दे आर वरीड, ये जरूर है। थैंक यू।
थैंक यू शेर सिंह जी। शहबाज जी, हम लोगों को थोड़ा सा वक्त का ध्यान रखना पड़ेगा। वही मैं कह रहा था कि अरमान जी के साथ किसी दिन और रखते हैं। अवनीश आल्सो देयर, विल हैव अ वेबिनार ऑन दैट। स्पेशली डेडिकेट, बिकॉज अगर हम लोग अभी शुरू करते हैं। प्रखर जी, मैं बस एक बात जरा पूछना चाह रहा था अरमान जी से कि अरमान जी थोड़ा ये बता दें कि ऐसे लोगों के लिए कोविड में क्विकली जरा वो ये बता दें और क्या किया जा सकता है, सरकार को और क्या करना चाहिए, तो उससे हमें थोड़ा सा वो आइडिया होगा कि हम और क्या। अब सरकार, विकलांग व्यक्ति का जरूरत कोई अलग नहीं है। जो आम व्यक्ति है उनकी जो जरूरत है वही जरूरत विकलांग व्यक्ति की भी है। बट ये समझ लीजिए कि जो आदमी घर पे है, विकलांग है और उसको एक विकलांगता है और कोई बीमारी है, डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, तो घर पे ही अगर है, उसी कोई रोजगार नहीं है, तो उसकी जरूरतें क्या होंगी। आज अनलॉक का प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन विकलांगता की जो नीड है उससे आगे नहीं, उनके वही है। उनको आज भी खाना चाहिए, उनको आज भी पैसे चाहिए, उनको आज भी दवाई चाहिए, उनको आज भी केयर गिवर की सपोर्ट चाहिए। ये जो चीज किसी भी सामान्य अवस्था में उनको तकलीफ होती है। तो आई थिंक द सिचुएशन हैज नॉट चेंज फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। दे कंटिन्यू टू रिमेन इन अ वेरी वेरी हॉस्टाइल सिचुएशन। और आज तक अरमान जी, सॉरी टू इंटरप्ट, ऐसा जैसे कोई विजुअली प्रॉब्लम में है या हेयरिंग प्रॉब्लम है, जैसे नॉर्मल तो सबके लिए एक वीडियो बन गया कि ऐसे हाथ धोना है। हमने इतना टीवी में वो एडवर्टाइजिंग देखी कि ऐसे हाथ धोने हैं आपको, ऐसे बच के चलना है। उसके लिए कोई पर्टिकुलर वीडियो या कुछ ऐसा बना था, कुछ ऐसा एडवर्टाइजिंग हुई कुछ ऐसी? देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद एम्पावरमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में, उन्होंने वीडियो बनाया होगा जी। लेकिन उस वीडियो से क्या होता है, आप अगर हाथ धोने के लिए आपको अगर कोई आदमी मदद करेगा तभी वो हाथ धो पाएंगे ना। वही तो मेरा सवाल था। सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, वही मेरा सवाल था। हाँ, तो सोशल डिस्टेंसिंग इज अ मेजर इशू फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। जिन लोगों को मदद की जरूरत होती है, केयर गिवर का या अपने परिवार के किसी व्यक्ति का जो मदद चाहिए अगर कोई भी काम करने के लिए, तो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की जरूरत है। मेरा एक ही सवाल सबसे है, आप लोगों ने तो देखा होगा मार्च 22 तारीख से आज तक कितने सर्कुलर निकले होंगे सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम के। एक भी सर्कुलर में विकलांगता के बारे में लिखा हुआ है क्या? सही सही। अरमान जी, मैं एक चीज, AIPC में हमारी बहुत बढ़िया लीगल टीम भी है, शायद इस बात को हम लोग राइट चैनल्स तक पिकअप कर सकें। और अवनी जी भी हैं, रोशन जी भी हैं, दोनों ही पार एक्सीलेंस लॉयर हैं। आई एम सो सॉरी। नहीं, अरमान जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। मैं थोड़ा सा 2 मिनट चाहूंगी अरमान जी की बात को थोड़ा सा आगे। या रोशन जी कुछ बोल रहे हैं। या प्लीज रोशन जी। So Arman ji, I am Advocate Roshan Santhalia. I also happen to be the RO at AIPC, and I really like some of the points that have been raised by you. And those are very, very pertinent points. Problem जो मेरे को लग रहा है law में इतनी नहीं है, implementation में ज़्यादा problem है। मैं प्रोफेसर अमिता ढांडा का स्टूडेंट रहा हूँ अपने कॉलेज में, और मैं नालसा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, और मैंने डिसेबिलिटी लॉ या डिफरेंटली एबल्ड जो लॉ है उस पे भी काफी काम किया है। सो आई थिंक लॉ में इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जीक्यूशन में ज्यादा प्रॉब्लम है। और आपके माध्यम से टुडे आई वाज एबल टू हियर अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स विद अ लॉट ऑफ पैशन, and I think that, you know, as AIPC we should take this opportunity, and Avni is also here, who's the state secretary for Delhi. We should take this opportunity to work closely with you and probably develop something which actually specifically shows where the gap lies. If the gap lies in the law, then we need to see that. If the gap lies in the execution of the law, then we need to see that. और एक specific अगर हम report बनाएं, तो I think that can be actually taken to the government of the day या जो भी state governments है जिस भी way में. But I really like the way you put your points across, and I'm sure this is an opportunity for AIPC also to, you know, kind of contribute in this area. Thank you रोशन जी। अरमान जी की बात पे और रोशन की बात पे 1 मिनट का समय चाहूंगी। अरमान जी, आपने ना एक बहुत अच्छी बात कही कि विकलांग जो है वो कोई उनका केवल नाम बदल देने से कुछ नहीं होता, और वो भी जो समान लोग हैं उनके जैसे ही अपॉर्चुनिटीज पाते हैं।
तो मेरे ख्याल से ये इक्वालिटी पे बड़ा अच्छा नुआंस्ड पर्सपेक्टिव बड़ी सिंपल सी भाषा में आपने रखा। मैं रोशन की बात से सहमत करती हूँ कि विकलांग लोगों के लिए उन्हें क्या जरूरतें हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कानून के तौर पर क्या किया जा सकता है और कानून के बाहर भी क्या किया जा सकता है अवेयरनेस के मामले में, दोनों में ही ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की तरफ से हम आपके साथ मिलकर इस पर काम करना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो बात कही और जितनी सशक्ति। I'll be happy to associate. Avni, whether it's दिव्यांग और विकलांग, विकलांग या दिव्यांग? दिव्यांग बात मैं नहीं कही कि दिव्यांग वर्ड जो है वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अरमान जी ने उसमें एक बात जोड़ी कि सिर्फ नाम तो जरूरी है ही कि हम उन्हें डिफरेंटली एबल्ड बुलाएं, दिव्यांग बुलाएं, लेकिन सिर्फ दिव्यांग बुलाकर ये सोचे कि भाई ये तो डिफरेंटली एबल्ड है तो उनका ख्याल रख लिया जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। हमें प्रोएक्टिव मेजर्स लेना पड़ेगा कानून की मदद से, सरकार की मदद से, ताकि इन लोगों को वाकई में बराबरी का हक जो है वो समाज दे पाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो दे। और आई एम श्योर अरमान जी भी समझते हैं कि हम सबके इमोशंस और सेंटिमेंट्स बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो शहबाज जी हो, चाहे वो मैं हूं या अवनी है। और हाँ तो मैं अब क्विकली जी जी प्रखर जी मैं बस कुछ सेकंड्स लूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा आपका जो टॉपिक था कि इसके कोविड के प्रभाव क्या होंगे, वो हमारा थोड़ा सा कम रहा। डॉक्टर साहब वक्त बहुत, आई एम सो सॉरी, मैं टाइम नहीं लूंगा, बस ये ध्यान नहीं डॉक्टर साहब केवल इतना कहना है, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछ रखे हैं वो अब जाना चाहते हैं। एक तो प्रश्न पूछ लेता हूँ, सॉरी आप बाद में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके डॉक्टर साहब उस क्वेश्चन के आंसर में आप बोल लीजिएगा, अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। जी मैं दूसरे प्रश्न पे आता हूं, जो हमारे एक यूजर हैं जिनका नाम आईफोन ही दिख रहा है, तो अगर हो तो हैंड रेस कर दें, हम क्वेश्चन पूछवा लेते हैं। वैसे उन्होंने ये कहा है, और ये प्रश्न मेरे ख्याल से डॉक्टर धर्मेश जी से ज्यादा होना चाहिए, कि उन्होंने बहुत साफ साफ पूछा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही अपने इतना असर्शन कर रही हैं और किसी तरीके से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो इससे कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं हम, इसके लिए क्या किया जा सकता है डॉक्टर धर्मेश जी? ऐसा है कि आपने देखा होगा कि अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, वो भी इसकी चपेट में आ चुके हैं जी। तो और इससे पहले थोड़ी देर पहले आपने, जब तो अरमान अली जी आए थे उससे पहले आपने एक बात कही थी कि अमिताभ बच्चन जी और उनके परिवार में काफी सदस्यों को भी ये हो गया, तो गरीब आदमी कैसे बचेगा जी। तो इसमें मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि जिसमें जो भी चूक करेगा, वायरस के लिए कोई गरीब अमीर नहीं है, तो इसमें जो भी चूक करेगा वो इसकी चपेट में आने के खतरे में आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज हमको, समाज को, सबको देना चाहिए कि इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं है, वायरस किसी को पहचानता नहीं, वायरस टोटली अंधा है और वो जो भी चूक करेगा वो उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा, कानून की तरह। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात आपने कही कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और जो दूसरे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, तो उनका जहां तक सवाल है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो हम टीवी में देखते हैं, क्योंकि हम वैसे फिजिकली तो आज तक अब आजकल तो देख नहीं रहे किसी को, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मीटिंग्स करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो जहां तक मुझे मालूम है कि वो सब लोग अपने होम में ही आइसोलेटेड हैं। अब जब वो लोग होम में ही आइसोलेटेड हैं तो वो क्या है कि उनको मालूम है कि उनको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। जैसे मेरा पर्सनल मैं बताता हूँ कि मैं 2 महीने से पूरी तरह से होम आइसोलेटेड हूँ, तो मुझे मालूम है कि जब मैं घर से बाहर जाऊंगा ही नहीं तो इन्फेक्शन होने का कोई चांसेस नहीं है, और मैं किसी से बिल्कुल नहीं मिल रहा हूँ, ना बाहर जाने वाले से ना आने वाले। तो उसी तरह से जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी उसी तरह से कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लीडर कुछ एडवेंचरस हो रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, और वो चपेट में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी आदमी, कोई भी हो, अगर वो चूक करेगा तो इसकी चपेट में आ सकता है। जी डॉक्टर शेर सिंह से दूसरा प्रश्न, और डॉक्टर साहब क्योंकि वक्त बहुत कम बताए तो बहुत शॉर्ट में प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा, मेरी आपसे निवेदन है। डॉक्टर साहब विक्रम सिंह जी का सवाल है कि माय क्वेश्चन टू द डॉक्टर्स, WHO says that India would have 2.5 lakh patients per day by January 2020, तो ये सिचुएशन क्या सही है या ज्यादा ओवर एस्टिमेटेड है, और क्या हम लोग पीक पहुंच चुके हैं या पीक अभी आएगा, ये इस पे प्रश्न है उनका। थोड़ा फिर से ऐसा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन खैर एनीवे, देखिए लोग मुझसे पहले कहते थे कि हमें पीक को आगे बढ़ाना है, और मैंने उनको कहा आप पीक आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, पीक के लिए तरस जाएंगे।
कि पीक कब आएगी, आप दुआ करेंगे कि पीक आ जाए। तो आज ये है कि अगर यहाँ का भी देखें, आप प्लेट्यू कह सकते हैं, प्लेट्यू कब आएगा, पीक कब आएगी, अभी तक पीक आई नहीं है। और मेरे ख्याल में पीक अभी नहीं आने जा रही है, कम से कम 20 सितंबर तक तो नहीं आने जा रही है, जो मैंने अपना कहा प्रेडिक्शन में। और आपको 15 अगस्त के बाद और 20 सितंबर के बीच में हालातों का पता चल जाएगा। और अगर किसी भी तरह से हाइड किया गया, जैसे डॉक्टर धर्मेश ने कहा, वायरस आपका कुछ नहीं समझता है पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स, वो तो एक चीज समझता है, नेचर, सत्य क्या है। चाहे वो ये भी नहीं समझता राम का नाम सत्य है कि कृष्ण का नाम सत्य है, उसके लिए तो बस सत्य का नाम सत्य है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 20 सितंबर के बाद, अगर आपने 15 अगस्त से 20 सितंबर, 15 अगस्त तक तो आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको डाउन 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 वो होगा, लेकिन 15 अगस्त से 20 सितंबर के बाद या तो अपने आप ही पता लग जाएगा आपको स्थिति का, नहीं तो 20 सितंबर के बाद आपको नेचर पता लगा देगी। और जहाँ तक पीक का सवाल आपने किया, तो पीक नहीं आने वाली है कम से कम 20 सितंबर तक। और मुझे तो पीक के आसार अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं 20 सितंबर के बाद भी, पर 20 सितंबर तक तो नहीं आएगी जी। डॉक्टर जे.एन. मिश्रा जी का एक प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं। जे.एन. मिश्रा जी लाइव हैं, और जे.एन. मिश्रा जी प्लीज प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब अनम्यूट कर दीजिए, जे.एन. मिश्रा जी अनम्यूट कर लीजिए पहले खुद को जी। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही साथ बहुत खुश हूं कि आप अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें मैं एक प्रकरण लेना चाहता हूं, वो है मूक बधिर का, दिव्यांग का। तो हमारी नेहरू राम भारती यूनिवर्सिटी से अपराजिता पांडे आपका पार्टिसिपेट कर रही है, और स्मिता मिश्रा भी पार्टिसिपेट कर रही है। मैं आपसे चाहता हूँ, आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ। नमस्कार। तो आइए नेहरू ग्राम भारती का देखिए, वहाँ किस तरह से मूक बधिर के बच्चों, दिव्यांग जनों को हम लोग गांव से इकट्ठा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको ड्रेस देते हैं, उनको खाना देते हैं। और साथ ही साथ जब हम गाड़ी से जाते हैं, कोई माँ कहती है कि भैया हमारा साथ ही साथ उनको ट्रेन करके, स्कूल करके, फिर उनको जॉब भी दिलवा रहे हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो किसी ने कहा को अच्छा करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, और लोगों की ज्यादा अच्छा करते हैं। हमारे पास वहीं पर कॉलेज है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है नेहरू राम भारती, जो ग्रामीण अंचल की है। तो ग्रामीण अंचल में किस तरह से मूक बधिर बच्चों को हम इकट्ठा करके उनको खाना देते हैं, ड्रेस देते हैं, पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और हाई स्कूल के बाद इंटर तक बाद जॉब करते हैं, बहुत अच्छी तारीफ होती है। तो तबियत खुल जाती है। और नेहरू ग्राम भारती में ये बताता हूँ, गाँव का ड्राफ्ट करते हैं, और गाँव में कहीं इन्फेक्शन नहीं है। गाँव की अपनी कार्बी या शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध रहता है, कि कोई दिक्कत नहीं। वहाँ इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, मॉर्बिडिटी कम है, और वहाँ पर कम फैलेगा ये कोरोना। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपका समय बहुत कम है। मेरा एक ही सवाल है कि मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आज के पार्टिसिपेंट को मैंने सुना, बहुत अच्छी है, और इसमें तो अमित शाह आपके बीच में है, वो आमंत्रित नहीं, आप सबको एक बार नेहरू ग्राम भारती आइए आप, और देखिए किस तरह से देख रेख कर रहे हैं, किस तरह उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और किस तरह से किया जाता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए, आपका अपना समय निकालने के लिए। अब दूसरा प्रश्न हमारा हमारी time for question? Yeah, I think just 2 questions we'll take and then we'll wind up. Can I ask one question? Is there a time? Let me ask the question of the participant and then we can take your questions. If it's not, it's okay. जी, ये हरपूल सिंह जी का सवाल है डॉक्टर शेर सिंह जी से फिर से। देश में लॉकडाउन कितना सफल रहा है? क्या आज के हालात को देखते हुए दिल्ली या पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लागू करने की राय देंगे आप? दो बातें हैं। पहले तो मैं ये कहूंगा, जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। और जो कहना है मगर कह नहीं सकते मर्यादा है। जी तो डॉक्टर साहब, लॉकडाउन सफल रहा? एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कि सफल रहा, एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कि सफल नहीं रहा।
देखिए सफल तो रहा है, लेकिन जो डिजायर हम करते थे, जो हम चाहते थे, जितना चाहते थे, वो बिल्कुल नहीं हमें मिला। क्योंकि और एविडेंस है, डाटा, कि अभी भी केसेस आ रहे हैं, अभी भी डेथ हो रही है, अभी भी हमारे एक्टिव केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर पूरे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी कहा जाए या दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में भी कहा जाए, तो हरफूल जी के इस प्रश्न का जवाब देना, एब्सोल्यूट टर्म्स में जवाब देना संभव नहीं है। लॉकडाउन कुछ सफल रहा और कुछ सफल नहीं रहा, वजह अलग अलग हो सकती है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब स्मिता मिश्रा जी के प्रश्न के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन को क्लोज करेंगे। प्लीज स्मिता जी। I wanted to ask one question। ये जो हमारा जो एक स्टिग्मा है बहुत तगड़ा कि जो लोग बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जो बहुत रिच हैं, उनको क्यों डिप्रेशन होता है? क्या हम इसको एक बीमारी की तरह, जैसे हम कैंसर को, ट्यूमर को और भी जितनी बीमारियां हैं जैसे लेते हैं, क्या हम उसको एक क्लिनिकल अप्रोच नहीं रख सकते? मेरा ये सब गेस्ट स्पीकर से ये क्वेश्चन है। सो एक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो हाउ टू गो अबाउट इट? इट्स अ बीमारी जस्ट लाइक एनी अदर फिजिकल एलिमेंट। अगर इंदु जी जवाब देना चाहेंगी इस पर। जी जी। ख्याल से बहुत समय से हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने आकर ये बात बताई है, अनाउंस करी है that they have gone through depression and they have come out of it. So that's a very good sign when people come out and they admit that yes, they have gone through depression and they have recovered and they are leading a normal life. So similarly, I think we all have to, as it is, I think mental health has never received a very welcoming kind of reception from people, because people take it as a stigma, or they again consider it something like a disability or some disadvantages. So I think slowly, and especially with COVID, I feel now people are forthcoming and realizing that unless we talk about it, we will not be able to handle it. जो सुशांत सिंह का केस हुआ, जो डॉक्टर अरविंद का केस सामने आया है, लोगों को ये समझ आ रही है कि अब इसको दबाना या छुपाना जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, and we must talk. And trust me, because of this, I'm getting a lot of calls for counseling and for help. And now people are becoming aware that they need to really work on themselves. To the extent, especially अपने बच्चों के लिए वो बहुत कंसर्न है, उनकी इमोशनल रेजिलियंस को लेकर वो बहुत कंसर्न है, क्योंकि जिस तरह का क्राइसिस इस वक्त हम देख रहे हैं, दिस वाज समथिंग अनफोर्सीन। तो एवरीबॉडी इज नाउ अवेयर कि अगर हम इसको आज इसके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चे जो हैं दे विल नॉट बी एबल टू लीड अ नॉर्मल हेल्दी हैप्पी लाइफ। एंड आई थिंक एवरी पेरेंट वांट टू नाउ वर्क टुवर्ड्स इट। तो मेंटल हेल्थ अब मुझे लग रहा है कि इट्स गेटिंग इट्स ड्यू अटेंशन, and it was long due. It was long due, and I'm glad that we are addressing this issue at this platform. मेरे ख्याल से मैंने पिछले 2 या 3 महीने में ज्यादा नहीं तो 35-40 वेबिनार्स करे होंगे just to talk about depression and anxiety and how do you prevent it. और एक प्रश्न जो हमने नहीं लिया या नहीं ले पाए वो ये था कि how do we prevent anxiety and depression. I could have shared some tips about it which could really help people कि how they can still make sure that they don't get affected by it, or in case agar hota hai then what has to be done. We could have taken this, but I know we are paucity of time, so we will not. We'll have it another time. Thank you, Dr. Saab. I think that every topic that was covered here needed a webinar of its own. So it's a rainbow that we have created here and tried to put as many things as possible. Thanks a lot to all of you. Now a vote of thanks by Kumar Ratanji. Ratanji? Can you please unmute yourself, Ratanji? सुन सकते हैं? Ratanji, please, vote of thanks. Yeah. So सबसे पहले तो पूरी नॉर्थ दिल्ली AIPC टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया, और मैं पहला वोट ऑफ थैंक्स में नाम लेना चाहूंगा। अनयूजुअल है, मैं स्पीकर से नहीं शुरू होकर पार्टिसिपेंट से शुरू करता हूं। सबसे पहले मिस अपराजिता पांडे, जिन्होंने लगभग 2 घंटे से पूरे वेबिनार के कन्वर्सेशन को साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया लगातार 2 घंटे तक, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर स्पीकर्स में अरमान अली सर, इनके साथ तो काफी काम करने का मौका मिला है मुझे, अभी भी करता हूं साथ में, तो अरमान अली सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे बीच आए।
अगली बार फिर कभी हम लोग डिटेल में इस टॉपिक पे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन बहुत बहुत थैंक यू अरमान अली सर। डॉक्टर शेर सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर इंदु अर्नेजा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से सारे ऑडियंस काफी कुछ सीखने को मिला। और डॉक्टर धर्मेश लाल जी, हमारे अपने, जो हमेशा गाइड्स के लिए रेडी रहते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, वी मस्ट थैंक डॉक्टर शशि थरूर एंड सलमान सोच जी, जो हमेशा मोटिवेट करते हैं हमें AIPC को इस तरह के वेबिनार को आयोजित करने के लिए। और रोशन संथारिया जी, AIPC नॉर्थ दिल्ली के कोऑर्डिनेटर, एंड अवनी बंसल, AIPC दिल्ली चैप्टर की सेक्रेटरी। और हमारे एडवोकेट प्रखर दीक्षित, शहबाज कासिम, स्मिता मिश्रा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट प्रशांत दुबे, जिन सभी टीम ने इतनी मेहनत के साथ पिछले लगभग 15 दिनों से कोऑर्डिनेशन, एजेंडा ड्राफ्टिंग, इनविटेशन, इस पे काम किया। दो बातें मैं जरूर कहूंगा इसके साथ साथ, हम लोगों ने इसकी एक रिकमेंडेशंस की लिस्ट भी बनाई है। इस वेबिनार के बाद हम लोग जो रिकमेंडेशन लेकर आएंगे उसको कोशिश करेंगे कि AIPC के चैनल के थ्रू आगे सबमिट किया जाए। जो भी रेलिवेंट ऑथोरिटीज हैं, गवर्नमेंट हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और भविष्य में जैसा बताया हमने डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिलीफ एंड रिस्पांस, पैंडेमिक, साथ में जिसमें मेंटल हेल्थ की भी बात हो, इन सब को लेकर हम लोग जरूर इस एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम प्रोफेशनल्स, आम आदमी, ग्रामीण अंचल की बात हुई इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत अच्छे तरीके से उनको लेकर आगे बढ़े। तो आप सबों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर दिस। एक स्पेशल मेंशन छूट गया है, तो आईफोन से जिन यूजर्स ने प्रश्न पूछा था वो श्रीमती आशा टमचा जी हैं। आशा टमचा जी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा टमचा जी महिला कांग्रेस उत्तराखंड की अध्यक्ष भी हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद आशा जी आने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे जो हमारी क्वेरीज थी वो रिजॉल्व हुई इससे। आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू आशा, थैंक यू। आपने बहुत मेहनत करी है पिछले 2 घंटे से, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं चलते वक्त एक शेर और बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों का कुछ सेकंड और ले सकते हैं। जी, एक आखिरी बात मैं बोलना चाहूंगा आपके पहले। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का कार्यक्रम और वेबिनार है और ऑर्गेनाइज करें, जिसमें हम लोग हर तरह के लोग और जितने भी कम्युनिटी होती है उसको टारगेट करते हुए वेबिनार करेंगे। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी करेंगे। तो ये बस एक इंफॉर्मेशन था सबके लिए। हाँ प्रखर, आप क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू। वैसे प्रशांत जी के कंसेप्चुलाइजेशन और मेहनत के बिना ये हुआ नहीं, इन्होंने कुछ बोला नहीं खास इसमें, इस पर मत जाइएगा। तो मैं शेयर से कंप्लीट करता हूँ, ज्यादा नहीं रोकूंगा। मुमकिन है यही दिल के मिलाने का सबब हो, मुमकिन है यही दिल के मिलाने का सबब हो, ये रुत तो हमें हाथ मिलाने नहीं देती, ये रुत तो हमें हाथ मिलाने नहीं देती। इसी सब के साथ आपका इस्तकबाल, नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you all participants. Thank you.